My privilege. It is my privilege and pleasure to invite Shiba Aslam Fehmi to anchor and moderate this, event. Such a relevant event, I must say. Violence against women. It bears so much of relevance in the current day and society, not only in India, not only in our country, but all over the world. I believe if I'm to go by certain available statistics, I believe there are 1 billion, before, billion women the world over who, in some way or the other, have seen violence against them just because they are women, just because of their gender. You know, in societies and in the world where there is so much of educational emancipation, where the woman has become an equal actor in the economic sphere, and she has become an economic unit in herself. I see no reason why there should be violence against women in the ratio of 1:3. Out of 3 women, 1 woman has witnessed violence against her. So it is definitely a malaise and evil which needs to be looked at by all the members of all societies the world over. In fact, there is more of need to look at this problem by men, because essentially it is at the hands of men that this violence has been met out. It's not women. Though I must say, I'm sure all of you have your own point of view, but just to touch upon it briefly, that without the consent of women, this cannot happen. Yes, there is a certain biological reality. There was a certain historical economic reality. There is a certain societal reality. All those things aside, but it definitely, the woman herself, until unless she is complicit in one way or the other, this cannot happen. So I'm very happy to see the list of speakers today, and I'm very happy to see the kind of people who are participating in it. I only wish there were more men today than women, because men need to hear this and men need to take proactive action. At the same time, I would like to welcome our new member, Dr. Tabassum Jamal. She brings to this forum to empower and to the forum otherwise very rich experience and education. She's a scientist. She was until she hung her boots, if I may use the same phrase, a year ago at the CSIR. She was a chief scientist there, and she has written a lot. She's a person of letters, and she has participated in some very credible fora the world over. Thank you very much for joining in, Dr. Jamal. We welcome you. On behalf of all of us here, I warmly welcome you. Shiba, over to you. Thank you very much for agreeing to steer this. And Khalid Ansari Saab, my compliments to you for organizing this at in the way that you have. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, Dr. Javed. It is a very difficult topic for me today, because as academically, we have been talking against surveillance. We have been talking about the problems of modern state vis-a-vis surveillance and how it is affecting the life of common people. So with this backdrop, I want to initiate this dialogue today, where we are going to talk about the surveillance and the question of women's safety. So this is very important to understand that there are various forms of surveillance. Increasing surveillance, decreasing violence could be a very loaded term, could be a very loaded phrase. And one thing, what is the language we are going to use? I mean, should it be in English or should we be talking in Hindustani? I think Hindustani would be better. Whatever language you are comfortable in, I'm sure all of us understand English, Urdu, and Hindi. So whatever language, whoever is comfortable in, please go ahead.
Okay, very well. So as I said, surveillance is a very loaded term in modern times, and it is a product of modernity also only. Surveillance happens when there is a superior being taking care of your activities, looking into your personal life, and deciding what you should be doing and you should not be doing. That way, it is a very hierarchically, and you can say that it is very patronizing term. And all over the world, people are fighting against surveillance. So having said that, there is a within the government framework and administrative framework, there is this vote for surveillance vis-a-vis crimes are concerned, and we have seen so many crimes against people, crimes against women getting busted only through the surveillance mechanisms, which are majorly CCTV, and there are other forms of surveillance as well. So let us talk about the whole idea of surveillance increasing and violence decreasing vis-a-vis women on this very important day, International Day for the elimination of Please. Am I visible and audible? Yes, please. तो जब आज हम बात कर रहे हैं आज के दिन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस, यानी कि औरतों के प्रति हिंसा को खत्म करने के लिए किस तरह से सर्वेलेंस को बढ़ा करके हिंसा को और अपराध को कम किया जा सकता है, इस विषय पर बात करते हुए मैं एक बार दोहराना चाहूंगी हिंदुस्तानी में कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। सारी दुनिया में लोग सर्वेलेंस को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमारे अपने दौर में अभी जब हम और आप ये बातें कर रहे हैं, उसी समय पेगासस का जो मामला है वो सर्वेलेंस का मामला है, और वो बहुत संगीन मामला है, वो कोई छोटा मामला नहीं है। और भीमा कोरेगांव जैसे जो मामले हुए हैं उसमें आपने देखा है जो अक्यूज लोग हैं उनके कंप्यूटर्स पे सर्वेलेंस के जरिए ही, सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर के जरिए ही बाद में कुछ ऐसे इंक्रिमिनेटिंग ईमेल्स डाले गए हैं और जिनको फिर बाद में एजेंसीज ने इस्तेमाल करके कहा कि वो देशद्रोह के काम में लगे हुए थे। तो ये इतना सेंसिटिव मामला, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं क्योंकि एक एकेडमिक के साथ साथ जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि जब आप सर्वेलेंस की इजाजत दें और जब आप सर्वेलेंस का नाम लें, बहुत बहुत एहतियात बरतें। ये कोई छोटी बात नहीं। एक बार आपने ये भस्मासुर है, इसको आपने अगर लॉन्च कर लिया अपने ऊपर, तो फिर आप इससे कैसे बचेंगे, क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है किसी भी डेमोक्रेसी में। क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमें डेमोक्रेसी की आदत है पिछले 70 साल से। सब ठीक तो है ना? मुझे काफी डिस्टर्बेंस लग रहा है स्क्रीन पर। Who is taking care of the screen? जी। ओके। तो हम लोगों को पिछले 70 साल में एक डेमोक्रेसी की आदत है। हम अपनी मर्जी से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्शन एक्सेट्रा, उन सबको एंजॉय करते हुए रहे हैं। ऐसे में जब सर्वेलेंस की बात होती है, मुझे याद आ रहा है दिल्ली का चुनाव, जिसमें एक पार्टी विशेष ने बहुत जोर शोर से इस बात पर बात की थी कि वो सर्वेलेंस के जरिए क्राइम अगेंस्ट वुमेन को कम करेंगे और सर्वेलेंस के जरिए ओवरऑल क्राइम को कम करेंगे। हमने बहुत सारे मामलों में देखा है कि जब क्राइम हो रहा था तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, और वो जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो क्राइम को रोक नहीं रहे थे, वो क्राइम को दर्ज कर रहे थे। यानी अपराधी को पकड़ने में मदद करने में सर्वेलेंस काम आ सकता है। सर्वेलेंस का ओवरऑल जो इम्पैक्ट है या उसका यूज है वो मेजरली यही है, वो क्राइम रोकेगा नहीं, लेकिन क्राइम को बस्ट करने में या उसका सबूत बनने में वो काम आएगा। और यही उसकी लिमिटेशन है। अब इस लिमिटेशन के साथ में हम इसके साथ, इस आइडिया के साथ कितना अचीव कर सकते हैं, कितना नहीं, इस पर बात करते हैं। तो सर्वेलेंस किस तरह का? सर्वेलेंस क्या आप सड़क के अलावा, गली के अलावा भी कहीं कर रहे हैं? यानी कि जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है या जो सार्वजनिक स्पेसेस हैं, पब्लिक स्पेसेस हैं, उनके अलावा भी कोई सर्वेलेंस हो रहा है क्या हमारे पास जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जो आंकड़े हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के जो आंकड़े हैं, और हमारे साथ शायद शमीना शफक भी हैं जो वुमेन कमीशन की मेंबर रही हैं, उनके पास बहुत इंसाइट होगी इस बारे में जब वो बात करेंगी अपनी। तो जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो हो कहाँ रहा है? मेजरली तो वो घरों के अंदर हो रहा है, वो उन स्पेसेस में हो रहा है जिनको हम फ्रेंडली स्पेसेस कहते हैं। तो फ्रेंडली स्पेसेस में किस तरह का सर्वेलेंस हम ला सकते हैं, किस हद तक ला सकते हैं, और वो फिर एक पक्ष के साथ साथ दूसरे पक्ष के प्राइवेसी का हनन है या नहीं? तो ये सारे सवाल हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन में डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा चंक है। और आपने देखा हो
कि बहुत सारे जो केसेस हमारे सामने आते हैं उसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो परिवार के अंदर हो रहा होता है। परिवार के अंदर क्या नेशन स्टेट सर्वेलेंस को इंट्रोड्यूस कर सकता है, और क्या ये नैतिक है, क्या ये एथिकल है? तो सर्वेलेंस की जो लिमिटेशन है हम वहीं से इसके साथ ग्रैपल करने लगते हैं कि क्या हम परिवार के अंदर या उन स्पेसेस में जो निजी स्पेसेस हैं उनमें होने वाले क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, क्या हम उसको सर्वेलेंस से रोकेंगे? इसके अलावा वायलेंस या क्राइम अगेंस्ट वुमेन वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, वो सिर्फ उसके शरीर पर नहीं होता है, वो उसके मानसिक आघात भी होता है, उसमें उसमें उसकी आत्मा पर भी आघात होता है। तो और ये भी अब हमारे भारतीय दंड संहिता में ये भी एक डिफाइंड है, सीआरपीसी में डिफाइंड है। तो जो फिजिकल के अलावा जो बाकी अब्यूजेस हैं, जो वायलेंस है, तो उसको हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे, उसको हम कैसे गिनेंगे, कैसे हम किस पैमाने से उसको देखेंगे कि वो सर्वेलेंस में भी दर्ज हो जाए? क्योंकि सर्वेलेंस के जो हमारे मैकेनिज्म है खासकर क्राइम को रोकने के लिए वो बहुत लिमिटेड है और उनके पास अभी वो तरीके नहीं है। लेकिन सरकारों के पास जो सर्वेलेंस के तरीके हैं नागरिकों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, नागरिकों के रोजमर्रा की जिंदगी को देखने के लिए, वो बहुत ही बारीक हैं, बहुत ही परिष्कृत हैं, रिफाइंड हैं। और हम और आप जब एक छोटी सी फेसबुक पर पोस्ट लगाते हैं कि चाय पीने का दिल चाह रहा है, तो उसके बाद या कॉफी पीने का दिल चाह रहा है, उसके बाद हमारे पास जिस तरह के मैसेजेस आते हैं, या हम अपने घर में बात कर रहे होते हैं कि आज कार में कुछ प्रॉब्लम है और हमें जाना जरूरी है, तो उस वक्त हमारे पास जिस तरह के प्रमोशनल और डिस्काउंट और सेल और इस तरह के मैसेजेस आते हैं, हमें पता है कि हाउ आर वी बीइंग वॉच्ड। यहाँ तक कि अगर आप अपना फोन उठा करके दूर रख दें या उसको स्विच ऑफ कर दें, स्विच ऑफ करने के बाद भी उसको कैमरा ऑन कर सकता है और आपको देख सकता है और आपकी सारी गतिविधियों को दर्ज कर सकता है। तो पेगासस के इस दौर में वुमेन सेफ्टी के नाम पर सर्वेलेंस का जो बढ़ता हुआ दायरा है हमारी जिंदगियों में, आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। मेरा एक यहाँ पर बात मैं और आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि वायलेंस जो है वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है उसको हम लोगों ने जब से अलग से एक स्टैंड अलोन, एक एक्सक्लूसिव एंटिटी की तरह, एक एक्सक्लूसिव कैटेगरी की तरह जब से हमने डील करना शुरू किया है, मुझे ये लगता है हम ज्यादा नाकाम रहे हैं। यानी कि ये कैसे मुमकिन है कि समाज में हम बाकी हर तरह का वायलेंस होने दें, उसके लिए हमारी सेंसिटिविटी जो है वो लोएस्ट रहे, और सिर्फ क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो, तब हम उठ के खड़े हो कि भाई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों ऐसा होगा कि लिंचिंग्स होंगी, क्यों ऐसा होगा कि फेक एनकाउंटर्स होंगे, क्यों ऐसा होगा कि कस्टोडियल डेथ्स होंगी, क्यों ऐसा होगा कि खुले आम विच हंटिंग होगी लोगों की, लेकिन क्राइम अगेंस्ट वुमेन बस रुक जाएगा, महिलाओं के प्रति अपराध रुक जाएगा। ये समझ की अपरिपक्वता है, ये इमेच्योरिटी है कि कोई भी समाज जब उसमें हेट कल्चर और क्राइम कल्चर पैदा होता है तो वो किसी एक आइडेंटिटी के ऊपर ना रुकता है, ना वो वहां से शुरू होता है, ना सिर्फ एक आइडेंटिटी को बचाया जा सकता है। ये बात समझने की है कि ये हो नहीं सकता है कि लिंचिंग्स होती रहें, बच्चे अगवा होते रहें, ऑर्गन इलीगल ऑर्गन ट्रेड होता रहे इसी समाज में, और सिर्फ क्राइम अगेंस्ट वुमेन ना हो या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ना हो। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को स्टैंड अलोन जब करके जब हम लोग देखते हैं, और कई बार तो यहाँ तक जाते हैं कि निर्भया वाले मामले में तो हम लोग सड़कों पर बहुत दिनों तक थे, और फिर जो कानून बने उसमें आप देखिए फास्ट ट्रैक की बात होती है, इस तरह के जितने भी जघन्य अपराध होते हैं उसमें फास्ट ट्रैक की बात हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन हाथरस हो गया, हमने देखा कि निर्भया के बाद ये गैंगरेप ऐसा था जिसमें सरकार के तंत्र ने उस लड़की की लाश को, पीड़िता की लाश को उसके माँ बाप को दिए बगैर सीधे ले जाके कूड़े की तरह जला दिया। उसके घर वाले उसके लास्ट राइट्स नहीं कर सके। तो हम उस क्राइम को रोकने के लिए जब हम सड़कों पर उतरे थे, वहां से लेकर के हाथरस तक आप आइए तो आपको पता ये चलता है कि आप कितने भी कानून बना लें, कानूनों से कुछ होता नहीं है, कितने भी फास्ट ट्रैक चला लें, फास्ट ट्रैक से कुछ होता नहीं है। यानी कि फास्ट ट्रैक तो एक टाट में पेबंद जैसी बात है, मखमल का पेबंद। एडमिन प्लीज म्यूट करिए सब लोगों को। Why is not everybody muted yet? मिस्टर नकवी प्लीज खुद को म्यूट कर लीजिए। जी जी, तो हमने
हमने निर्भया से लेकर के हाथरस तक देखा कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन को हम रोकने में नाकाम रहे हैं। अब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि हमारी पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि जिसके ऊपर भी रेप का आरोप लगे उसको वहीं के वहीं भीड़ में ही लिंच कर दिया जाए, भीड़ में ही सजा दे दी जाए। यानी कि सच अ बिग फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी। ओह माय गॉड। आसिम खान साहब प्लीज म्यूट कीजिए खुद को। जी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो सवाल ये है कि लोग यहाँ तक, उनकी जो कानून बनाने वाले लोग हैं, कानून साजी करने वाले लोग हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए, उनके यहाँ तक बयान आ गए कि जो वो करता है, रेप करता है, हम उसको त्वरित सजाएं दे दें, या सऊदी अरब में जो होता है, जो मुस्लिम कंट्रीज में होता है, इस्लामिक कंट्रीज में होता है, वो हम कर दें, खुलेआम फांसी दी जाए। तो ये जो पूरा मामला है, ये पैचवर्क का मामला है कि आप रेप के लिए थोड़ा सेंसिटिव हैं, बाकी क्राइम्स के लिए सेंसिटिव नहीं है एज अ सोसाइटी, और उसी का खामियाजा हम सब लोग भुगत रहे हैं कि किसी बूढ़े के साथ हो रहा है, किसी नौजवान के साथ हो रहा है, किसी बच्चे के साथ हो रहा है, और साथ में जब महिला के साथ होता है तो हमारी सेंसिटिविटीज जाग जाती हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा मसला है हमारी समझ का, हमारी सोच का, या हमारी एक झूठी सेंसिटिविटी का, कि यहाँ पर ये कहा जाएगा कि बाकी क्राइम पर हम बाद में बात करेंगे, हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे बात करेंगे। तो ये जो है, इससे बात बनती नहीं है। अगर क्राइम कल्चर समाज में फैल रहा है, पैदा हो रहा है, और लोग क्राइम करके बच रहे हैं, यानी कि सारे सबूत हैं। आप ये बताइए कि वो सारे मामले जिसमें सबूत हैं, जिसमें सब कुछ है, वो उसमें सर्वेलेंस की कोई जरूरत नहीं थी, ना सर्वेलेंस की कोई कमी थी। उन मामलों में जो ऑन रिकॉर्ड है, वहां पर नेशन स्टेट उन लोगों को, अपराधियों को सजा नहीं दे रहा है। आप ये देखिए कितने लिंचिंग्स के मामले ऐसे हैं जिनमें पुलिस वाले मौजूद हैं, वीडियो बनी है। सर्वेलेंस की तो कोई कमी नहीं है ना, वहां पर सर्वेलेंस भरपूर है, वीडियो बनी हुई है, पुलिस वाले मौजूद हैं, उनके रहते लिंचिंग हुई है। पालघर का मामला देख लीजिए, और बहुत सारे लिंचिंग जो गोवंश रक्षा वालों ने की है, उन लिंचिंग्स को देख लीजिए, सबके सबूत हैं। तो सबूत की तो कमी नहीं है ना। नेशन स्टेट का फेल्योर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है, जुडिशरी का फेल्योर है कि जिन लोगों को आपने सजाएं देनी थी वो आप सजा नहीं दे पाए। और फिर क्या हुआ? पॉलिटिक्स आपकी ये करती है कि अपराधियों को फूल माला पहनाता है मंत्री, और फिर पॉलिटिक्स ये करती है कि उनको टिकट दिया जाता है। रैगर वाले मामले में आपको याद होगा कि उस बंदे ने पहले कुल्हाड़ी से हत्या की, फिर अधमरे आदमी को जिंदा जला दिया, उसका खुद वीडियो बनवाया एक बच्चे को ले जाकर के उसने क्राइम में, और उसके बाद अगली रामलीला की झांकी में उस हत्यारे को की टैब्लू वो हुआ, झांकी निकली, उसको आइडियलाइज किया गया। तो सर्वेलेंस की तो कोई कमी नहीं थी। तो ये जो सारा क्राइम है, ये सर्वेलेंस के बावजूद हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक पॉलिटिकल क्लास है जो ऐसे अपराधियों को इनाम दे रहा है। तो जिस समाज में अपराधियों को इनाम दिया जा रहा है, वहां सर्वेलेंस से कुछ नहीं होगा। आप सर्वेलेंस कितना भी बढ़ा लीजिए, आपको याद होगा ज्यादातर बड़े मामलों में सीसीटीवी नहीं चल रहा होता है, वो पहले से ही हैंडल किया जा चुका होता है। तो जो करने वाले लोग हैं, जो करने वाले जहन हैं, अगर वो साफ नहीं है, वो ईमानदार नहीं है, और वो उनकी अकाउंटेबिलिटी रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं है, तो आपका सर्वेलेंस भी कुछ नहीं करेगा। तो इट इज अ डेविल्स एडवोकेट दैट आई एम बीइंग टुडे, बट मेरी ये राय है कि सर्वेलेंस जो है वो बहुत ही अथॉरिटेरियन प्रोटोकॉल है किसी भी क्राइम को रोकने का। दूसरे प्रोटोकॉल्स जो है वो ज्यादा कारगर हो सकते हैं। जैसे महिलाओं के लिए, हम तो जब हम फेमिनिज्म पढ़ रहे थे तो 2000 की शुरुआत में हम लोग तो इस पर बात कर रहे थे कि महिलाएं तो पीड़ित है सर्वेलेंस से। घर वाले कहते हैं छोटा सा 8 साल का भाई है, उसको साथ में लेके जाओ, वो उनका सर्वेलेंस टूल था कि वो उसको साथ में लेके जाओ, जैसे वो बचा नहीं सकता है, उसको चुगली के लिए भेजते थे कि जो बहन गई है वो कहाँ गई है, उसने किससे बात की, कहाँ रुकी, कुछ खाया, कुछ पिया, कैसे गई, कैसे आई, इतनी सी जानकारी के लिए यही सर्वेलेंस सिस्टम था भारतीय परिवारों के अंदर। और वो चुगली करवाते थे उस छोटे भाई से, वो कोई किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं था। तो हम तो बहुत देर तक इस पर बात कर रहे थे फेमिनिज्म के अंदर और जेंडर स्टडीज के अंदर कि महिलाओं को बाहर निकल के आजादाना तरीके से तो महिलाओं को बाहर निकल के एक
सिटीजन के तौर पे अपने राइट्स इस्तेमाल करते हुए आजादाना तरीके से, जैसे दूसरे लोग निकलते हैं, पुरुष निकलते हैं, लड़के निकलते हैं, वो क्यों नहीं कर सकते? और किसी भी समाज में अगर आप किसी घर के 4 बच्चों में से 2 बच्चों को घर के अंदर बंद करके रख देंगे और 2 को आप दुनिया देखने देंगे, तो दोनों के विकास में फर्क होगा। दोनों का जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो विवेक है, जो शऊर है, उन सब में फर्क होगा। और फिर आप कहेंगे क्योंकि तुम्हारे अंदर इन 2 में शऊर कम है इसलिए ये नालायक है, या इस लायक नहीं है कि इनके ऊपर डिसीजन मेकिंग छोड़ी जाए, और वगैरह वगैरह। तो ये एक सिस्टम है जो सर्वेलेंस के नाम पे या सुरक्षा के नाम पे ये लगातार महिलाओं ने इसको झेला और सदियों से झेला है। बहुत छोटा सा हमें एक विंडो मिला है जिसमें हमें इतने सालों में पहली बार हम ये मांग कर रहे हैं कि आप देश में क्राइम कल्चर को बदलिए। इम्प्यूनिटी का जो एहसास है लोगों में कि वो क्राइम करेंगे और बच जाएंगे, आप इसको बदलिए। आप पैट्रियार्कल प्रोटोकॉल्स जो है सेफ्टी के, आप उनकी जगह आप मॉडर्निटी के प्रोटोकॉल्स लाइए। यानी कि बाहर के मुल्कों में जब हम जाते हैं, वहां पर बात करते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं यूरोप वगैरह में, तो वहां पर अगर कभी किसी यूथ से, मेल यूथ से पूछिए कि आप लोग लड़कियों के साथ आप लोगों के जो रिश्ते हैं, आप कभी मॉलेस्ट नहीं करते हैं, आप ईव टीजिंग नहीं करते हैं, तो एक तो ईव टीजिंग उन्हें पता नहीं है व्हाट इज ईव टीजिंग। तो लेकिन जब उनको बताओ तो वो कहते हैं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम ऐसा क्यों करेंगे, वी हैव आवर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। तो हमारे समाज के मर्दों में, नौजवानों में सेल्फ रिस्पेक्ट का जो आइडिया है वही सामने आता है, कम से कम उसी को इम्बाइब किया जाए, वही इंस्टॉल किया जाए। तो ये सारी तरीके जो विकसित समाजों में जहां पर महिलाओं की इज्जत है सड़क पर, पब्लिक स्पेसेस में, और बेहतर है हमसे, वहां ये कैसे हुआ है, तो उन पर भी हमें शोध करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि किस तरह से हम इसको सरकार और स्टेट और मशीनरी और उसके अलावा हम नजरिए के बदलने से हम इस पर बात करके कि महिला किसी भी तरह से कमतर इंसान नहीं है, और सिर्फ इसलिए कि उसकी बायोलॉजी अलग है इसलिए उसका सोशल स्टैंडिंग अलग हो जाना चाहिए। जो फर्क है जेंडर और सेक्स का, वो फर्क उसको बताना चाहिए। हम लोग अपने घरों के अंदर जिस तरह जेंडर क्रिएट करते हैं, जेंडर्ड ह्यूमन बींग्स क्रिएट करते हैं, उस पर बात होनी चाहिए। जब बेटे को पता होगा या भाई को पता होगा कि बेटी बहन के कप में भी उतना ही बॉर्नवीटा और दूध है जितना मेरे कप में है, वो भी बादाम खाएगी, मैं भी बादाम खाऊंगा, उसकी एजुकेशन और मेरी एजुकेशन बराबर है, और उसको भी पूरे मौके दिए जाएंगे जिससे मुझे दिए गए हैं, और घर की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी असासा है घर में, उसमें उतना बराबर का हक बहन का भी है। जब वो बराबरी देखेगा अपने घर में, बाहर निकल के भी वो बिहेव करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम घरों को चेंज करें, घरों के अंदर महिलाओं की स्थिति पर बात करें और बराबरी की बात करें। और उसके अलावा जो स्टेट का काम है कि क्राइम अगेंस्ट हूसोएवर है, उसको उस पर वो रूल ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, 2 चीजों पर ध्यान दे। तो रूल ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ की कमी की वजह से कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि हम क्राइम कर सकते हैं। इस मौके पर मुझे याद आ रहा है कि एक बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े लीडर ने अपनी रैली में ये बात कही थी कि अगर एक हिंदू औरत को नुकसान हुआ या उठाई गई तो हम उसके बदले 100 मुसलमान औरतों को उठाएंगे। वो ये प्रॉमिस नहीं कर रहे थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो एक हिंदू अगर औरत परेशान की जाएगी तो हम उसका कड़ी से कड़ी सजा देंगे और मेक श्योर करेंगे कि ये क्राइम और किसी के साथ ना हो। तो ये नहीं हुआ। उन्होंने एक क्राइम के बदले 100 क्राइम करने का वादा किया। तो इस तरह की हमारी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में सर्वेलेंस क्या करेगा, इस पर हम आज मनन करेंगे, बात करेंगे। हमारी पहली स्पीकर, डू वी हैव ऑल द स्पीकर्स विद अस, सूर्या? जी शमीना जी। तो अवर फर्स्ट स्पीकर मिस शमीना शफकत, हमने उनका वुमेन कमीशन का कार्यकाल भी देखा है, बहुत इफेक्टिवली काम किया है उन्होंने, बहुत अच्छा रिस्पांस देती थी जब भी कभी उनको फोन किया। मेरी तो खैर पुरानी जान पहचान है, आई नो शी इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, और बहुत हसास है, बहुत सेंसिटिव है, और इस समय भी वो अपने तौर पे एक जो भी उनका रोल हो सकता है पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करने में, उसमें लगी हुई है। शमीना, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है और बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। जी शिबा, is there any question or you want me to just continue on the topic? Yeah, please continue on the topic. All right. Assalamu alaikum everyone. First of all, thank you very much for doing this because आज symbolically आज से लेकर 10 दिसंबर तक UN के कॉल पर पूरी दुनिया में 10 दिन we talk about
what are the issues of women, and especially how can we eradicate violence against women. And बहैसियत एम्पायर के एक छोटे से मेंबर के और फॉर्मर मेंबर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के, दोनों तरह से हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम एम्पायर में ये डिस्कशन कर रहे हैं. हाँ, शीबा अच्छी दोस्त हैं और हम उनकी बात सुन रहे थे, बट थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए. कंफ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि बहुत वेरीड टॉपिक्स को लेकर और बहुत ज्यादा आपस में, मुझे शीबा लग रहा है, कंट्रास्ट है. बिकॉज आज मेरे ख्याल से हम 25 नवंबर को एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को कमेमोरेट करने के लिए सिंबॉलिकली उस पर डिस्कशन कर रहे हैं. और जब आप अपनी इंट्रोडक्टरी, आई एम रियली सॉरी बट आई थिंक वी नीड टू रियली टॉक अबाउट इट, बिकॉज जब आप अपने इंट्रोडक्टरी सेशन में ये कहती हैं कि रेप को जब हम बिल्कुल सिंगल एस्पेक्ट में देखते हैं बनिस्बत या जो बाकी इश्यूज हैं, चाहे वो लिंचिंग हो या और कोई इशू हो, और इसलिए वो खत्म नहीं हो रहा, मुझे लगा रहा है दिस इज रॉन्ग. इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी फॉर वुमेन एक्टिविस्ट. जब हम वुमेन इश्यूज को आइसोलेशन में देख पा रहे हैं, इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल. और इसके लिए मुझे लगता है कि हम नहीं, सब जानते हैं कि हिस्टोरिकली वुमेन्स मूवमेंट, खासतौर से अगर हिंदुस्तान की बात करें, आपने तो फेमिनिज्म पढ़ा है. आई हैव नॉट रेड इट, बट यस, आई फील आई एम अ फेमिनिस्ट एंड आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम अ फेमिनिस्ट. बट आई फील कि ये जो पूरा वुमेन्स मूवमेंट रहा है, जहां पर हम वुमेन के जो खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे थे, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, उनको हम एज अ सिंगल एंटिटी देख पा रहे हैं और उसके बारे में बात कर पा रहे हैं. ये वुमेन्स मूवमेंट की बहुत बड़ी जीत है. क्योंकि देखिए, वुमेन को आप ऐसे समझिए, इट्स अ ह्यूमन बीइंग, और समझने की जरूरत नहीं, दिस इज अ फैक्ट. मगर ह्यूमन राइट की जब बात होती है तो वहां वुमेन्स राइट की बात नहीं होती है, आज भी नहीं होती, जबकि आप वुमेन राइट्स को अलग से देखते हैं. तो एज अ सिंगल एंटिटी उनकी बात करना बहुत जरूरी है. जब आप सर्विलेंस की बात करते हैं तो सर्विलेंस डेफिनेटली इट्स एन इन्फ्रिंजमेंट अपॉन वंस पर्सनल स्पेस, और वो नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. मगर अगर हम इन टोटलिटी पूरे टॉपिक को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन खत्म हुआ है जब से हम इन 10 दिनों को खास तौर से सिंबॉलिकली हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं? नहीं खत्म हुआ है. और ये खत्म, अगर ये लगता है कि बाकी जब क्राइम है हम उसके साथ मिलाकर उसको देखेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो हरगिज खत्म नहीं होने वाला. क्योंकि औरत को तो इंसान ही नहीं समझती ज्यादातर दुनिया. आई एम सॉरी बट पेट्रियार्कल सोसाइटी सिर्फ मर्दों की नहीं है, औरतों की भी है. इट्स नॉट जस्ट मेन एंड नॉट ऑल मेन एंड नॉट ऑल वुमेन. बहुत सारे मर्द हैं जो इस इशू को बहुत सेंसिटिवली देखते हैं, इनफैक्ट ज्यादातर मर्द हैं. कुछ मर्द हैं जिन्होंने इस टॉपिक को या विमेन इश्यूज को के खिलाफ बोलकर या जो हरकतें वो करते हैं, पूरी एक कौम को, जिसको कहना चाहिए, बदनाम कर दिया है. सिमिलरली, ऑल वुमेन आर नॉट फेमिनिस्ट. ऑल वुमेन डोंट टॉक अबाउट हाउ वुमेन have to support each other. There are a lot of patriarchy in women. महिलाओं में भी बहुत सारी पितृसत्ता है, और उस पितृसत्ता के चलते ही जो महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनमें कहीं कमी नहीं आ रही है. अगर हम जब इस टॉपिक की बात करते हैं और उसमें हम सियासत भी ले आते हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि जो माइनॉरिटीज के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है उसको भी हमें ऐड कर देना चाहिए. सो आई थिंक देन वी आर मिक्सिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. फिर कहीं पर भी फोकस नहीं होगा, बिकॉज जब हमें किसी एक इशू को रेस करना है तो इन टोटलिटी, इन टोटो हमें देखना पड़ेगा कि वहां जो एंटिटी है वो एक जीता जागता इंसान है, जो क्योंकि औरत है इसलिए उसको उस पर्टिकुलर दर्द से गुजरना पड़ रहा है. मैं एक छोटा सा, आप सब हो सकता है थोड़ा वेग लगे, मगर फैक्ट ये है कि अगर हम कहीं बैठे हों या हमें जरा सी खरोंच लग जाए, जरा सी चोट लग जाए, या कोई हमें चुटकी काट ले अचानक से, हमें पता ना हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो हम बिलबिला पड़ते हैं. आप जरा अंदाजा लगाइए कि एक औरत, एक बच्ची के जिस्म को जिस वक्त रौंदा जाता है, कई बार एक और कई बार एक से ज्यादा, 4, 3, 10 लोग रौंदते हैं, उस वक्त उस औरत के ऊपर क्या बीतती है. इट्स नॉट जस्ट वन डे, इट्स बेसिकली अ लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा. और ये ट्रॉमा सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, ये ट्रॉमा जो मेंटल नहीं होता, ये ट्रॉमा इमोशनल नहीं होता, ये ट्रॉमा पूरी, और अकेली उस औरत या उस बच्ची का नहीं होता, ये पूरी फैमिली का होता है. और ये ट्रॉमा सिर्फ इसलिए नहीं होता कि इज्जत चली गई, ये ट्रॉमा इसलिए होता है क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है हमारे देश में, मैं मानती हूँ कि चाहे वो लिंचिंग हो, चाहे वो और किसी किस्म के क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन हो, उसको में भी उतनी ही बदतमीजी होती है, उसमें भी उतनी ही तकलीफ होती है. बट जब एक औरत के साथ होता है तो उस औरत को ही डिमीन किया जाता है,
ऐसा और कहीं नहीं होता, और किसी क्राइम में नहीं होता। अगर किसी मर्द को या किसी शख्स को, क्योंकि वो दलित कम्युनिटी का है या कोई मुसलमान कम्युनिटी का है या किसी लोअर क्लास से आ रहा है या XYZ किसी क्लास से, अगर उसको किसी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है तो उसमें उसकी गलती नहीं मानी जाती, उसको बेचारा कहा जाता है, उसके खिलाफ उसके साथ बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। मगर औरत के साथ जब कोई क्राइम होता है तो वाहिद एक ऐसा एंटिटी है, एक ऐसा इंसान है औरत, जिसके साथ जब कुछ होता है तो उसको दोषी मान लिया जाता है, उसको अपना मुंह ढकना पड़ता है अगर बलात्कार होता है, उसको अपनी आंखें छुपानी पड़ती हैं अगर उसके साथ। आई एम टॉकिंग हियर अबाउट वायलेंस, एंड विच इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस इज बेसिकली रेप। बट ऐसा नहीं है कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस अगर रेप है तो बाकी जो फॉर्म ऑफ वायलेंसेस है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिजिकल हो, वो वायलेंस नहीं है, या उसको रोकने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है। सो दैट इज व्हाई शिबा, आई फील दैट जब आपने कहा कि उसको एज स्टैंड अलोन एंटिटी, क्योंकि हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन को देख रहे हैं और इसलिए क्राइम अगेंस्ट वुमेन खत्म नहीं हो रहा है, तो आई एम सॉरी, आई थिंक इट्स अ बिग विन फॉर द वुमेन्स मूवमेंट एंड आल्सो मेन्स मूवमेंट। व्हाई ओनली वुमेन्स? वेयर इन एटलीस्ट नाउ महिलाओं के मुद्दों पर अलग से चर्चा तो हो रही है, एटलीस्ट वुमेन आर बीइंग टॉक्ड अबाउट देयर राइट्स, देयर प्रॉब्लम्स, देयर इश्यूज। अदरवाइज औरत को तो एंटिटी ही नहीं समझा जाता था। सो दिस इज वन इशू दैट नीड्स टू बी टेकन। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सर्वेलेंस, की सर्वेलेंस किस तरह से हमारे लिए नुकसान कर रहा है, या सर्वेलेंस कितना हमारी पर्सनल स्पेस में इन्फ्रिंज कर रहा है। डेफिनेटली जो आपने एग्जांपल दिया कि एक लड़की अगर बाहर जा रही होती है तो परिवार में ये कह दिया जाता है कि भाई को साथ लेकर जाओ, क्योंकि वो एक चलता फिरता सर्वेलेंस लड़की के साथ है जो बता देगा तुमने कहाँ बात करी, तुम कहाँ रुकी, तुम किससे मिली, तुमने क्या किया, तुम जो कहकर घर से निकली थी तुमने किया या नहीं किया। तो ये तो एज ओल्ड प्रैक्टिस चली आ रही है, जिसको अब नए नए फॉर्म्स में कहा जा रहा है। मगर मुझे जो एतराज है वो इस बात से है कि जब अरविंद केजरीवाल जी, मैं तो खुलकर कहती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने निर्भया के बाद ये कहा था कि दिल्ली में हम इतने 100 और इतने हजार कैमरे लगा देंगे, तो वो कैमरे लगाने का मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि आप अज्यूम कर रहे हैं कि क्राइम अगेंस्ट विमेन तो देखिए होगा, मगर हम कैमरा लगा रहे हैं ताकि जो क्राइम अगेंस्ट विमेन कर रहा है उसकी शक्ल आ जाए उसमें, फिर हम उसको पकड़ लें। पूरा जो इंडियन सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, या जो हमारा पूरा जूरिस्प्रूडेंस है, मुझे उससे तकलीफ ही इस बात की है कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन होगा और उसके बाद 1 2 3 ABC ये हमारा प्रोटोकॉल होगा, ये SOP होगा और इसके मुताबिक हम काम करेंगे। डेटरेंस की बात हम नहीं करते, हम ऐसे प्रोविजंस की बात नहीं करते कि हम ये करेंगे तो क्राइम नहीं होगा, बिकॉज कैमरा लगाने से क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं खत्म हुआ। अगर कहीं कैमरे लगे भी तो, अगर वो फंक्शनल हुए भी तो, पहली बात तो वो कैमरे लगते नहीं है, कुछ लगते हैं, फोटो खिंचती है, मीडिया में आता है, इश्तेहार होता है और वो बंद हो जाता है। क्योंकि अगर 1000 कैमरे की बात हुई तो मेरे ख्याल से 200 कैमरे लगा के वो किस्सा खत्म हो जाता है, और आप 15 दिन बाद अगर उस इलाके में जाइए तो वो कैमरे काम नहीं कर रहे होते हैं। सो ये जो आई वॉश है, हमें इससे तकलीफ है। एक्चुअली अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन रोकना हो तो हमें बात करनी पड़ेगी बहुत यंग माइंड से, बिकॉज हु आर दीज पीपल who are actually committing crime against women। ये औरतों और लड़कियों के ऊपर जो क्राइम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? वो कोई आसमान से उतर कर तो लोग नहीं आ रहे ना, हमारे आपके बीच में से लोग हैं। प्रॉब्लम क्या है? नी जोक रिएक्शन। निर्भया हुआ, एक लॉ बना दो। कोई और कांड हुआ, हम सड़क पर आ गए मोमबत्ती लेके। 4 दिन मीडिया में चला और बात खत्म हो गई। 4 दिन मीडिया में चलने के बाद एक औरत की इज्जत या एक बेटी की इज्जत लूटने के बाद, या उसके साथ छीना झपटी होने के साथ, या उसके ऊपर एसिड फेंके जाने के बाद, या उसके ऊपर घरेलू हिंसा होने के बाद, अगर हम ये 4 दिन के बाद भूल जा रहे हैं और फिर इंतजार कर रहे हैं कि कोई और क्राइम होगा, फिर हम उठेंगे और फिर हम शोर मचाएंगे, या हम कोई अपने जो एक्ट्स हैं उनको हम पुट अप करेंगे टुगेदर, तो वो गलती है। इन टोटलिटी हमारे मैकेनिज्म इन प्लेस क्या बन सकते हैं कि क्राइम अगेंस्ट विमेन या चिल्ड्रन करने से पहले लोगों को डर लगे। तो बेसिकली वो है, देखिए पुलिस स्टेशन जो है वो एक पब्लिक स्पेस है, जैसे बस स्टेशन एक पब्लिक स्पेस है, रेलवे स्टेशन एक पब्लिक स्पेस है, उसी तरीके से पुलिस स्टेशन इज ऑल्सो अ पब्लिक स्पेस। जब हमें बस स्टेशन में जाने पे डर नहीं लगता, रेलवे स्टेशन में जाने पे डर नहीं लगता, तो क्या वजह है कि एक आम इंसान को, एक आम सिविलियन को पुलिस स्टेशन में जाने से डर लगता है? आई थिंक दैट इज वेयर वी नीड टू हिट, बिकॉज वो सबसे बड़ी शुरुआत होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम इज एन इशू। और जब हम रिपोर्ट नहीं करते, हमारा मुंह दबा दिया जाता है, चुप 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 चुप, कुछ हो गया चुप रहो, खामोश रहो, तुम्हारी इज्जत की बात है। तो जो कर
रहा होता है क्राइम, उसका हौसला बढ़ता है। बिसाइड्स, अगर आप जितने लॉज हैं हिंदुस्तान में उनमें देखें, तो अलावा जो अभी एक्ट बना था प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम अगेंस्ट सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस, जहां पर ऑलरेडी कमिटीज बना दी जाती है, जहां पर ऑलरेडी ये देखा जाना चाहिए, चाहा नहीं जा रहा है बट देखा जाना चाहिए कि भाई ये कमेटी है, अगर आपके खिलाफ कोई सेक्सुअल ऐसा कोई एडवांसमेंट कर रहा है तो आप वहां जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। दैट इज द ओनली मैकेनिज्म इन प्लेस इन इंडिया वेयर यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट समथिंग वी कैन फील, बिकॉज औरतों की सिक्स सेंस बहुत ज्यादा होती है, उनको पता होता है कि उनके आसपास अगर कोई उनको गलत तरह से देख रहा है या गलत नियत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको समझ सकती है, महसूस कर सकती है, दो चार टचेस होते हैं और समझ में आ जाता है कि ये एडवांसमेंट गलत हो रहा है, तो दे कैन कंप्लेन एंड मे बी वो चीज वहां रोकी जा सकती है। मगर उसके अलावा हिंदुस्तान में और कौन सा ऐसा क्राइम है जो होने से पहले रोकने का कोई मैकेनिज्म हो? कौन सा पुलिस स्टेशन है? सारे जितने भी सर्कल ऑफिसर्स होते हैं, इन सबको पता होता है कि हमारे एरिया में शोधे कौन है, कौन जुआ खेल रहा है, कौन स्मगलिंग कर रहा है, कौन छेड़खानी कर रहा है। ज्यादातर मार्क्ड होते हैं। क्या उन पर कोई टैपिंग होती है? क्या किसी तरीका का मैकेनिज्म है कि जहां पर उनको नैब करके टैप करके ये कहा जाए, या फॉर दैट मैटर पॉलिटिकल सिस्टम में क्या हमारा कोई पॉलिटिकल लीडर है, किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जो खुद अपने आप से जब अपनी मन की बात कहता हो तो ये कहता हो कि अगर औरतों के खिलाफ अत्याचार करोगे तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा? कभी नहीं कहा किसी ने। लड़के हैं, गलती हो जाती है, ये तो कह देते हैं राजनीतिक लोग, मगर ये नहीं कह पाते कि अगर तुम कुछ गलत करोगे तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। अगर एक चीफ मिनिस्टर या एक होम मिनिस्टर या एक प्राइम मिनिस्टर उठकर अगर ये बात कहे तो बहुत सारे लोगों के हौसले पस्त हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए, बेल पर बाहर आ जाते हैं, छेड़खानी करी, ईव टीजिंग करी, रेप के केसेस है, सेक्सुअल हरासमेंट के सीरियस केसेस है, चार्जेस है उनके ऊपर, एंड दे गेट दे बेल एंड दे कम आउट। बट क्या हमारे जो जस्टिस सिस्टम है या पुलिसिंग सिस्टम है उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म है दैट वी कीप एन आई ऑन देम कि कहीं ये दोबारा, क्योंकि आप देखिए रिपीट क्राइम ऑफेंडर्स वही होते हैं, वही लोग दोबारा क्राइम करते हैं जो एक मर्तबा जेल जाए, ज्यादातर अगर आप जितनी भी स्टडीज उठाकर देखें। सो सर्वेलेंस इज डेफिनेटली नेवर एन आंसर। इट कैन एक्ट एज अ डेटरेंट इन द केस कि ठीक है हमने बसेस में लगा दिए क्योंकि निर्भया कांड हुआ था, वी हैड अ वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस, तो एटलीस्ट जो कौन कर रहा है हम उनको पकड़ पाए। बट इट कैन नॉट बी द ओनली मैकेनिज्म टू इंश्योर कि देयर इज नो क्राइम अगेंस्ट वुमेन। मुझे ऐसा लगता है चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या और कोई सरकार हो, जब वो कहती है कि हम कैमरा लगाएंगे तो वो एक्चुअली ये कहना चाहती है कि अगर क्राइम होगा तो हम पकड़ लेंगे। क्राइम क्यों होने दे रहे हैं आप? डार्क स्पेसेस क्यों है सड़कों पर? क्या वजह है कि एम्पल लाइटिंग नहीं है? क्या वजह है कि जो पिंक बूथ, जिनकी ये बड़ी बड़ी दुहाई, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ तो कह सकती हूँ, दी जाती है, वो पिंक बूथ सिर्फ नाम मात्र गुलाबी रंग के सजा दिए गए हैं, बट एक्चुअली उनके आसपास क्या हो रहा है ये भी देखने की कोई जहमत नहीं करता। तो इट्स अबाउट अकाउंटेबिलिटी, इट्स अबाउट डीजीपी कॉन्फ्रेंस होता है तो क्या उसमें विमेन इश्यूज को लेकर कोई अलग से सेशन होता है डीजीपी का, जहां पर बात की जाए बेस्ट प्रैक्टिसेस की कि कौन से स्टेट में कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस है। आई थिंक आई विल स्पीक एट लेंथ, बट आई डोंट नो हाउ this entire conversation is going to go. So if you want me to end, I'm happy to end. और अगर कोई questions है, you can ask me. Otherwise, I can talk for hours on this topic. Frankly speaking. Shamina, Yeah. we'll be having you again when we have open house, Yeah. and people might be asking certain questions very pointedly at you only, maybe. But right now, I think it is good enough. You have given an overview, and thank you for contradicting and for telling me many things. We all understand all those things, and we have gone some beyond that also. Anyways, thank you so much, Shamina. Your address was full of insight, and yes, you are talking about the young minds. And another point that you raised is why let it happen in the first place. Surveillance is a secondary thing. Why let it happen in the first place? Exactly, that was my point, that surveillance cannot stop. It can only tell that it happened. So that is, thank you so much. And now we have with us Dr. Amna Mirza. She is professor of political studies in Delhi University and also IMPAR member. So Dr. Amna Mirza, are you there? I am unable to see you on the screen. Are you there? Please unmute yourself. Can you hear me? Shukriya. Yeah, the floor is yours. Shukriya, Shiba ma'am. A very good evening. Assalamu alaikum to everyone. It's always a delight to connect with everyone at IMPAR platforms. Thank you, Khalid sir, Javed sir, Shiba ma'am, Shamina ma'am, Ashib, Nemat ma'am, Lubna ji, Mantasha ji,
Tabassum ji, everyone, बहुत बहुत शुक्रिया, because the topic that we'll be dealing, it's a very important one, International Day for Elimination of Violence Against Women, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन की 25 नवंबर को स्थापना की थी। क्योंकि मैं एकेडमिक क्षेत्र से आती हूँ और अखबारों में भी लिखती हूँ, तो थोड़ी बात मैं अपनी बात को 2 पार्ट में डिवाइड करूँ। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं देख सकती हूँ काफी और स्पीकर्स भी हैं जहां पर हम सबको एक दूसरे से समझना है, एक दूसरे से जानना है, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। देखिए, आंकड़े ये बता रहे हैं, अगर मैं कुछ यूनाइटेड यूएन विमेन के ही कुछ आंकड़े आप लोग के बीच प्रस्तुत करूं कि अगर हम एक सैंपल लें, और इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड की बात नहीं है, वेस्ट और ईस्ट की बात नहीं है, अगर हम आंकड़े लें वर्ल्ड ओवर, सो हर 3 में से 2 महिला जो होती है, दे एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ वायलेंस। UN.org पे आप ये डेटा चेक कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है कि 1 में से 10 महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास पुलिस हेल्प अवेलेबल ही नहीं है। तो जब आज हम वायलेंस को देख रहे हैं और एक बिगर गवर्नेंस के साथ साथ फेमिनिज्म के विषय को भी देख रहे हैं, तो यहाँ सर्विलियंस की जो बात आ रही है, देखिए मेरे हिसाब से सर्विलियंस इज इम्पोर्टेंट, बट इट हैज टू बी देयर इन अ फ्रेमवर्क ऑफ सपोर्ट एंड असिस्टेंस। जब भी हम वायलेंस की बात करते हैं, हमें ये समझना होगा दैट वायलेंस हैज मेनी फॉर्म्स। Of course, physical violence is an important form, but emotional violence, cultural violence, economic violence, जहां पर कहीं ना कहीं औरतों के पास आमदनी के जरिए नहीं होते, क्योंकि यदि अगर आपके पास आमदनी का कुछ जरिया होता है, आप बहुत सारी तकलीफों को, परेशानियों को जिंदगी में आप हटा सकते हैं। तो पहली बात हमें समझनी होगी दैट वायलेंस हैज मेनी फॉर्म्स। अब इस मेनी फॉर्म्स ऑफ वायलेंस में, क्योंकि एक देखिए हम सबको ऊपर वाले ने बनाया है और बहुत अच्छा बनाया है, जैसा भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, बट व्हेन दिस बायोलॉजी इज ट्रांसलेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ सोशल कंस्ट्रक्ट, क्योंकि मैं लड़की हूं तो मुझे ये करना है, क्योंकि मैं लड़की हूं तो मेरे लिए स्कूल अलग है, क्योंकि मैं लड़की हूं तो मेरे लिए यूनिवर्सिटी अलग है, या मेरे लिए कंपार्टमेंट अलग है मेट्रो में, या जैसे शामीना मैम ने बताया सीसीटीवी को लेकर, उस एंगल पे नहीं जाऊंगी, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शामीना मैम ने रखी है, दैट इज फेमिनिज्म को अगर हम ये देखें, दैट इज इट हैज कम ए लॉन्ग वे। पहले और महिलाओं ने आवाज उठाई थी कि हमारे पास वोट तक करने का अधिकार नहीं था। न्यूजीलैंड में पहला वोट करने का अधिकार दिया गया। अमेरिका में सफ्रेजिस्ट, इतनी डेवलप्ड कंट्री है लेकिन वहां सफ्रेजिस्ट मूवमेंट चला, फिर जाके बाद में औरत को वोट करने का अधिकार मिला। फिर टाइम के साथ हमें लगा कि भाई देखिए, सिर्फ वोट से क्या फायदा होता है, अगर हमारे पास नौकरी नहीं है, तालीम नहीं, उससे क्या फायदा होता है। सो इट हैज इंडीड कम अ लॉन्ग वे। अब वायलेंस तो देखिए है, और ये कहना कि समाज के साथ ये वायलेंस घट गया है या डेवलपमेंट के साथ कोई वायलेंस बढ़ गया है, नए जमाने के साथ वायलेंस घट गया है, वो गलत बात होगी। क्योंकि हम जानते हैं हर दिन अखबार जब हम खोलते हैं, कोई ना कोई विमेन रिलेटेड इश्यूज के ऊपर चर्चा होती है, चाहे वो वर्क प्लेस पर हो, कहाँ जहां पर हैरेसमेंट का कोई मसला हो, या वो फिजिकल वायलेंस हो, या फिर किस तरह से जिसे कहते हैं हाउस होल्ड इज द फर्स्ट सीट ऑफ इनजस्टिस। यहाँ पर अगर टीवी देख रहे होते हैं तो लड़के से कहा जाता है कि तुम टीवी देखते रहो, लड़की से कहा जाता है जल्दी से लाके पानी लेकर आ जाना, जो कि बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मतलब पानी लाना बहुत अच्छी बात है, सवाब का काम है, लेकिन एक डेरोगेटरी माइंडसेट तो है। अब इसमें ये कहना कि केवल मतलब कि सीसीटीवी या फिर सर्विलेंस नहीं होना चाहिए, वो गलत होगा, क्योंकि एक बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन से महिला ने, औरत ने अपनी जंग की शुरुआत करी। और ये जंग, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, देखिए मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ दैट नॉट एवरी वुमन इज अ फेमिनिस्ट, उसी तरह नॉट एवरी मैन इज अ मिसोजिनिस्ट। अगर आपको ये बदलाव की, और ये अच्छाई की लड़ाई है, क्योंकि अच्छाई की लड़ाई इसलिए है कि एक जो हल्क है इंसानियत का, जिसकी बायोलॉजी अलग है, और वो तो ऊपर वाले ने बनाया है भाई, लड़की पैदा हो या लड़का पैदा हो, या हमारे हाथ में होता है, तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, तो उसके साथ कोई अन्याय ना हो, ये लड़ाई केवल महिला अकेले नहीं लड़ सकती। इस लड़ाई में उसको अपने भाई के, अपने शौहर की, अपने दोस्त की, अपने चचा ताया, सबकी जरूरत होती है। तो सिमिलरली नॉट एवरी मैन इज अ मिसोजिनिस्ट। अब सर्विलियंस के साथ किस तरह का बैकअप सपोर्ट हमें चाहिए? पहली चीज हमें इस बात पे तवज्जो देनी पड़ेगी कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हैज टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पावर स्ट्रगल।
लड़कियों में और लड़कों में दोनों में ये बात उठानी होगी कि क्या कहीं ये प्रयास हो रहा है कि पुरुषों की तरफ से कि महिला को स्पेस ना दी जाए या महिला को आगे ना बढ़ दिया जाना चाहे। मैं आज सुबह ही टाइम्स ऑफ इंडिया के बोर्ड को एड्रेस कर रही थी, तो यही टॉपिक था, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। माना हमने बेहतरीन तरीके से प्रोग्रेस करी है, आज लड़कियां स्कूलों में हैं, हायर एजुकेशन में हैं, सब जगह अच्छी तरह हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरा सवाल ये है कि क्या ये वायलेंस जो है, ये जो ग्लास सीलिंग जो है, कि आज भी महिला बहुत सारी कंपनियों की सीईओ नहीं बन पाती, क्या कॉर्पोरेट पेट्रियार्की या फिर सामाजिक पेट्रियार्की एक पावर स्ट्रगल के अंदर बहुत सारी कहानियां हमारे बीच रख रही है, हमें उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। जावेद साहब बिगेन जब वो मैं बहुत सुन रही थी बहुत ही तवज्जो से, जिस तरह जावेद साहब ने कहा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज किसी भी ग्लोबल डिप्लोमेसी फोरम पे भी तो महिला के जेंडर इशू को काफी तवज्जो दी जा रही है, और यहीं पर हमें समझना है कि आर वुमेन विक्टिम ऑफ कंजर्वेटिविज्म फ्रॉम द प्राइवेट टू द पब्लिक रेम। जो एक सोच है कि भाई लड़की है तो ज्यादा ख्याल रखना है, और ये है, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन ये सोच कुछ ज्यादा आगे बढ़ गई, दैट वुमेन हैव टू फेस द ब्रंट ऑफ कंजर्वेटिविज्म मोर एज कंपेयर टू द मेन फोक। और इसकी नींव देखिए मानने पड़ेगा, और इस नींव हमेशा एक हाउस होल्ड यूनिट से शुरुआत होती है, फिर ये आगे तक जाती है। यहाँ पर कंजर्वेटिविज्म और स्टीरियोटाइप्स के अंदर एक और दूसरी लड़ी भी छुपाई है कि ये स्टीरियोटाइप्स बना कौन रहा है। का स्पेशली मुस्लिम वुमेन के संदर्भ में एक बात कही जाती है कि एक इमेज है कि आपको ऐसा दिखना चाहिए, और जब आप ऐसे नहीं दिखते तो आपके ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि भाई आप मुसलमान है भी कि नहीं। तो हमें ये सोचना है कि कौन है जो ये स्टीरियोटाइप्स को ऐसे बना रहे हैं। फिर दिस बैटल, एज आई सेड, इट विल नॉट बी फॉट जस्ट वन वे। औरत अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकती है, यू नीड द राइट सपोर्ट ऑफ मीडिया, ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स टुगेदर, पब्लिक फ्रेंडली पब्लिक स्पेसेस को लेकर यू हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। इसी से जुड़ा एक वो है जो हम सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, एंड वुमेन मस्ट रिफ्लेक्ट हियर दैट वुमेन इश्यूज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए कितने जरूरी हैं। अभी मैं थोड़ा सा अपना फील्ड स्टडी अगर मैं आपके बीच प्रस्तुत करूं, मैं लिटरेचर फेस्टिवल के साथ हैदराबाद गई थी, तो वहां मैंने ऐसे लोगों से पूछा कि आप किस बेसिस पर वोट करते हैं, तो महिला के वहां के लोगों ने कहा कि हम फला फला सरकार को वोट करते हैं क्योंकि हमारी म्यूनिसिपैलिटी हमें इतना वो देती है भट्टा, या हमारे लिए ये मदद करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट विमेन इश्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल स्पेस। अगर आप यूएस का भी एक केस स्टडी देखें, जैसे कमला हैरिस इस समय वहां की वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो जो एक आइडिया था दैट एवरी वोटर टू द बूथ, अगर जॉर्जिया इन सारे स्टेट्स का वो एक केस स्टडी देखें, उसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि कंसर्न्स ऑफ वुमेन शुड नॉट बी लेफ्ट आउट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वायलेंस को रोकने के लिए। आखिर में एक बात कहूंगी, देखिए लड़ाई कभी भी, ये जो जंग है, हम केवल एक हथियार से नहीं लड़ सकते। केवल ये कहना कि महिला के साथ गलत हुआ है, जो कि आप देख ही रहे हैं मीडिया में तमाम जगह बहुत सारी दिल को दहलाने वाली खबरें आती हैं, जिससे बहुत ज्यादा फिक्र हो जाती है। और लाजमी बात है, घर में बड़े जो हैं सब परेशान हो जाते हैं, फिर आगे जाके भी वर्क प्लेस पर और सारी चीजों में तकलीफ होती है। 498A आज के टाइम में जो एक क्लॉज लाया गया था कि भाई जैसे एक विमेन वायलेंस ऑफ अगेंस्ट विमेन को रोकने में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। आज सबसे ज्यादा अब्यूज्ड एस्पेक्ट ऑफ लॉ इज कि जिस प्रकार से कुछ महिलाओं ने 498 का पूरा मिसयूज करा, और आज एक बड़ा सैड स्टोरी है कि 498 हैज बीन जस्ट डाइल्यूटेड। आई एम श्योर हमारे साथ काफी अन्य लॉयर साहिबा भी हैं जो कि हमें बताएंगे, और जो कि शमीना मैम ने भी एक इम्पोर्टेंट बात की कि पुलिस स्टेशन में हम क्यों नहीं, हमारे लिए just a minute, I'm just unmuting her. डॉक्टर आमना मिर्जा, आप अनम्यूट कर लीजिए। अभी ठीक है क्या? मैं कहाँ से शुरू करूं? मैंने नहीं, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। हाँ, तो मैं बस यही कह रही थी कि जब हम वायलेंस अगेंस्ट विमेन को देखते हैं तो इसको हमें एक पावर स्ट्रगल के रूप में देखना है,
कि क्या सोसाइटी में कुछ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए महिला के ऊपर वायलेंस का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, हमें सवाल उठाना होगा कंजर्वेटिविज्म को लेकर, और ये कंजर्वेटिज्म प्राइवेट से लेकर पब्लिक रेलम तक जाता है। एंड ये कंजर्वेटिज्म से जुड़ा, जो कि मैं हमेशा मुसलमान लेडी के लिए एक बात जरूर रखती हूँ कि एक जो स्टीरियोटाइप हो गया है उसके ऊपर सवाल उठाना हमें बहुत जरूरी है कि कौन है जो हमें ऐसे कोडिफाई और वो कर रहे हैं। जिस प्रकार से जिस प्रकार से विमेन इश्यूज रिप्रेजेंटेशन है मीडिया में, आई थिंक उसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है। हम मुस्लिम विमेन आर टू ब्राइट, टू डाइवर्स, जिस प्रकार से उसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाई जा रही है। एंड इस रेल में इम्पायर बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। ये जो लड़ाई है, बिकॉज हम जानते हैं वायलेंस बहुत तरह के होते हैं, फ्रॉम कल्चरल टू इमोशनल टू फिजिकल टू इकोनॉमिक। ये लड़ाई केवल महिला अकेले नहीं लड़ सकती। नॉट एवरी वुमेन इज अ फेमिनिस्ट, सिमिलरली नॉट एवरी मैन इज अ मिसोजिनिस्ट। हमें परिवार को, समाज को, पूरे देश को, कौम को साथ लेकर चलना होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, विमेन इश्यूज को हमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जोड़ना होगा, पब्लिक इश्यूज के साथ जोड़ना होगा। क्यों ना मुसलमान समाज में, जैसे अगर मैं उदाहरण दे दूं, एक पहल हो कि भाई हम उस फला फला पार्टी को वोट देंगे जो हमारे घर की बेटियों को, हमारे को ज्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ाई देगी। आई थिंक एक हमारे पास एक प्रोग्रेसिव स्टैंड होगा। एंड तालीम तो एक ऐसी चीज है जिससे हर घर में बहुत ही बेहतरीन तरक्की होती है। And then last thing, that whenever we talk about violence, let's also reflect at how clauses जो violence को ठीक करने के लिए थे, वो किस प्रकार से यूज हुए हैं या मिसयूज हुए हैं। यहाँ पे अगेन मैं अपनी ओपिनियन नहीं दूंगी, लेकिन 498A का मैं जरूर उदाहरण दूंगी कि इस पर डिबेट है कि कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग ज्यादा हो गया है वेस्टेड इंटरेस्ट में। तो फिर वही बात होती है कि महिला फिर उस वाले पावर स्ट्रगल में जो स्पेस है कि वो पुरुष उसको पावर देना नहीं चाह रहा और महिला फिर उसी के अंदर का पूरा हो जाती है। सो अगेन टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देखिए सर्विलियंस इज इम्पोर्टेंट। ऐसे कहना कि हम सर्विलियंस से हट जाएं वो गलत होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो वायबल नहीं है। सर्विलियंस इज इम्पोर्टेंट बट इट नीड्स अ बैकअप सपोर्ट सिस्टम। ये एक अच्छा चीज है, लेकिन इसका सही उपयोग तभी होगा जब हम एक बैकअप सपोर्ट सिस्टम के साथ इस पर तवज्जो दें। तो बस यही दुआएं हैं कि वायलेंस, किसी भी औरत को, किसी भी खातून को किसी भी तरह का वायलेंस ना फेस करना पड़े, या किसी भी इंसान को। देखिए वायलेंस का, जैसे बहुत शीबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही शुरुआत में, इवन शमीना मैम ने भी, कि वो जो इम्पैक्ट होता है वो केवल उस लम्हे का नहीं होता, इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो किसी के पास भी कोई तकलीफ ना हो, यही दुआएं हैं, और अच्छे काम होते रहे आगे, यही सबके लिए शुभकामनाएं हैं। सो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया इम्पायर के सभी साथियों का इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पर मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर आमना मिर्जा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आप फेमिनिस्ट नहीं है, इसके बावजूद आप वही तो कह रही हैं जो फेमिनिस्ट भी कह रही हैं। तो इसलिए ये डिवाइड भी अब खत्म हो रही है कि कोई फेमिनिस्ट स्टेटेड फेमिनिस्ट है या नहीं है, और नहीं है तो भी तब भी वो इंसाफ की बात, ह्यूमन राइट्स की बात और इंसान को इंसान समझने की बात तो कर ही रहा है। आपने कहा कि स्टीरियोटाइपिंग को भी फाइट करने की जरूरत है, और औरतें जो हैं एजेंडा सेटिंग करें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, अपने एजेंडे को, अपने फायदे के, अपनी सुरक्षा के एजेंडे को उनके साथ डिस्कस करें और उनसे कहें कि आप इस पर फोकस करिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मिर्जा। नाउ आई इनवाइट डॉक्टर लुबना कमाल। शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्टेट जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इन कानपुर, and I hope she is here. I'm unable to see her. Yeah, please over to you. Thank you. Hello. शिवा जी, थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट हो, क्योंकि काफी स्पीकर्स भी हैं। Yes. So we are already almost an hour into the seminar, and we have covered only two eminent speakers. So I'll request everybody to be very precise, crisp, and on time. Like we have 10 to 12 minutes to each speaker. Thank you. Yeah, can I start? Yes, please. Yeah, hello, good evening, Assalamu alaikum, everyone over here. And thank you, Empire, for inviting me. And this is one of my favorite topics, and I'll be sharing my experiences with women from all over the world. I have patients from almost everywhere. And I would like to say that gender-based violence is irrespective of religion or ethnicity or nationality. Abroad, it is the incidence is lesser. In India, it is more.
but it encompasses everything. I mean, all states, all countries, everywhere. Now, what I have felt that the most important reason for this violence is why we are facing that is because our girls are not empowered. Even if they are educated, we still do not want to listen to the fact that they have been abused or molested or there has been any violence. So the most important thing is for the victim is to speak, and for people around them is to hear and probably then to act. All right. And surveillance can take care of whatever violence that is taking place outside the house, on the street, in the mall, maybe in the school, in the college, anywhere. But what about the violence that takes place inside the house? Because I have a lot of girls who come with the complaint that the brothers are violent with them, that the father is violent with the daughter, or uncles or cousins are abusing, sexually exploiting the girls in the family. No one wants to speak about that, and there can be no surveillance at all. We cannot install CCTV cameras inside every house. So in order to take care of that, the girls should be encouraged to speak, and we should be willing to listen to them. And unlike most of the panelists over here, I believe in gender equality rather than being a feminist. I believe in equality. So the most important thing is to shame the molester and not the victim. If if ever we get a complaint of someone coming up with the complaint of sexual violence or physical abuse, emotional abuse, we try to shut the girl instead of taking action against the person who's doing it. So with that, I would like to conclude, and I hope you'll find this useful. Thank you. Shivaji? I'm here. Thank you very much, Dr. Lubna. You reiterated what other speakers have already said, and you are very right that it is the attitude of the people that needs to be changed. Victim blaming and victim shaming has been going on in the society for long, and it is about time that we, stop this and understand the issues involved and how the power equation between the two genders work. Even the victims are made to believe that they are the reasons, it is their fault that they are being victimized. So it is very important to understand this victim blaming attitude. Thank you very much for this. Now we have another speaker, a very prominent one. And are we going to take, I don't see Ms. Shamsh here. No, she's here. She's there. Ma'am, I am right here. Hi, Shams. How are you? Hi, Shams is an Very advocate well, in Supreme Court. She is a lawyer. She will be talking about the technicalities of the law and how it functions and what are the impediments. Thank you, Shams. Over to you. Floor is yours. Thank you so much, ma'am. Assalamu alaikum, everyone. This topic today is a very topic that is always close to me. I would say कि ये जो topic है, domestic violence, it starts at home. It starts when a child is born, a girl child is born, and जो doctor बोलता है या फिर nurses बोलती हैं, बेटी हुई है, वो वहीं से ही start हो जाता है. It starts right then and there. If you will see domestic, and the biggest problem आप घर में जो होते हैं, आप घर में ही आप देखते हैं कि आपके जो मदर है उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, या फिर आपकी जो मदर है उनका बिहेवियर अपने इन-लॉज के साथ अच्छा नहीं है. So you see violence when you are born. Just from there you start seeing that things are not good at your own place. शादी होती है, शादी के नाम पे जो गिफ्ट्स होते हैं वो गिफ्ट नहीं होता, that's actually दहेज, लेकिन उसको गिफ्ट के नाम पे दिया जाता है और उसको इतने प्राउडली सब लोग उसको फ्लॉन्ट करते हैं. So if you will see, biggest reason
for this domestic violence is that men are raised domestically challenged. Today you will see most of the men are domestically challenged. आपको बेसिक चीजें नहीं मालूम. लॉकडाउन में मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया है कि घर का काम आना कितना इंपॉर्टेंट है. वो नहीं होगा तो उसके बिना आपका घर चलता नहीं है. So I think that one of the important part is that from nursery, home science should be a subject, so that kids from day one they know that home science is this and you should know it. मैक्सिमम केसेस जो आप सुनते हैं, खाने में सॉल्ट ज्यादा हो गया इसलिए मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया. उन्होंने खाना अच्छे से बनाया नहीं था, मैंने ये काम बोला घर का करने के लिए, उन्होंने ठीक से किया नहीं. That is actually a frustration with them. If you see, अगर आप ऑफिस में हैं, ऑफिस के अंदर भी आपको कुछ काम दिया गया जो आपके सीनियर्स ने आपको बोला और वो आपको अगर नहीं आता तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई मुझे ये आता ही नहीं और मुझे ही वाला काम बोल दिया. सेम चीज इज एट होम. आदमी लोगों को सिखाया ही नहीं कि घर में ये भी इम्पोर्टेंट काम है. So firstly, we should start wherein the government should implement, जहाँ अभी of पिछले साल या 1 साल 1.5 साल पहले ही, इनफैक्ट लास्ट ईयर कोर्सेस सारे वो हुए, चेंज हुए, थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है. उसमें होम साइंस शुड ऑल्सो बी अ पार्ट नाउ. This is a fine time where everyone has understood the importance of home science. Secondly, there is a symbolic law. If you see Bollywood, I mean the TV plays a very vital role. जब सिगरेट लॉन्च हुए थे इनिशियली इन देयर 1940s और सो देयर यूज्ड टू बी उसको प्रमोट करने के लिए जो तरीका था वो तरीका ये था, कोई मैच हुआ, बॉल मैच हुआ या फिर फुटबॉल मैच हुआ, बाहर आए, गाड़ी में आके बैठे, उसने आते से सिगरेट को बर्न किया और ऐसे किया सो दैट एवरीवन गेट्स टू नो कि वो टेंशन को रिलीज करता है. दैट वाज द वे टू प्रमोट इट. योर ऑनलाइन जो हम देख रहे, जो टीवी है, जो टेलीविजन का जो पूरा एंटरटेनमेंट जोन है, दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. सिंबॉलिक लॉ क्यों? एवरीवेयर यू विल सी अ वुमन, every movie a woman is asked to wear a bikini, a man even in ice बिल्कुल ठंड होगा bikini, a man is asked to wear a jacket. That is called symbolic. You are from day one you are just promoting sexual. So जब आप बच्चे हैं घर में टीवी देख रहे हैं, वो लोग सिर्फ यही सब देखते हैं. So the entertainment जो industry है, that also needs to be changed. वहां पर भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस आना चाहिए. इट्स ओके, वी आर नॉट सेइंग कि ये आप दिखाओ नहीं, बट यस इट शुड बी इक्वल सो दैट एवरीवन नोज दैट इट्स ओके. अगर औरत ने बिकनी पहना, आदमी ने ये भी सेमी न्यूड है, that is how things will change. Unless and until things change here, nothing is going to happen. We have been talking about this topic from past more than 100 years now, पर आज तक भी वही हो रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस कब खत्म होगा. It's not at all ending. So it will end when you start it at your own home. आज के टाइम पे we are not raising a child, we are raising a boy or a girl. That's a problem. Everyone has to end that. आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी. It should be that you are raising a child. हर काम बोलिए करने को दोनों को, be it मार्केट जाना, be it घर में आना, be it कुछ फाइटिंग का मैच हो रहा है, कोई फुटबॉल मैच है, put the girl also there. That's how they will learn equality. इक्वालिटी पता रहेगी डे 1 से, उनको पता होगा कि ये चीज मुझे नहीं करना, ये चीज करना है, सबको पता रहेगा, तो वहीं से एंड होगा. If we started right now, 20 years later, जो आज हम ये बातें कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स पे हम ये जो आइडियाज लेकर आ रहे हैं, 20 years later, it will take 20 years. अभी का जो नया जनरेशन है, we teach them this thing. After 20 years, we are going to see changes will occur. Thirdly, रिलीजन में अगर आप देखेंगे, रिलीजन ओवर द टाइम कहीं ना कहीं मॉडिफाई अपने आप को करते रहा है. सती था पहले, सती ओवर द टाइम चेंज हुआ, एंड इसी तरह के और भी थे जो सिर्फ औरतों पे ही थे. कुछ भी चीज गलत हो रहा है, कुछ भी चीज रोकना है तो इट्स औरत को रोका जाए. अरे बुर्खा नहीं पहनी, अरे ये तो बाहर नौकरी पे ये जा रही, हमारे खानदान का नाम खराब हो. So religion
जो हमेशा से जब आया गया था, वो उसके पीछे से पर्पस था कि सब एक इंक्लूसिव रहे, सबको रहने का तरीका है। लोगों ने उसको इतना कर दिया कि एक मौलवी साहब जो एक्चुअली में ही वाज जस्ट हार्डली 6-7 years old, जो बनते हैं मौलवीज लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वंस हु हैव गॉन अब्रॉड एंड ऑल, वो एक कमरे में बैठते पूरी जिंदगी भर, ऑलमोस्ट 15 years वो एक कमरे में रहे, वहीं पर ही सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक ही किताब को उन्होंने पढ़ा। उनको क्या समझ में आएगा जब तक कि साइंस नहीं आप देखेंगे, अंग्रेजी नहीं देखेंगे, हिस्ट्री नहीं आप देखेंगे, आपको क्या समझ में आएगा कुरान शरीफ की भी बातें साइंस से कितना रिलेटेड है। पढ़ाई इज समथिंग दैट शुड बी प्रमोटेड। अब आप ये बताइए, हुजूर साहब ने कहा था कि अगर तालीम के लिए चीन भी जाना पड़े तो चीन जाइए, एंड ही वाज वेयर, ही वाज इन मक्का बैक देन। सो मक्का से चीन मतलब कितना ट्रैवलिंग था, और उस टाइम पे तो जहाज भी नहीं होता था, विच मेंट कि उन्होंने कितना एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया। पर आप आज के डेट पे आप देखिए, एजुकेशन के नाम पे ओनली कुरान शरीफ, नो, इट्स नेवर लाइक दैट। फिर आप देखिए कि हुजूर की वाइफ ने बोला था, हुजूर की वाइफ थी जो वॉर तक में गई थी, वो तो वॉर में अगर कोई जाएगा तो वो क्या बुर्का पहन के जाएगा? उन्होंने ऑफ कोर्स वॉर वाले जो क्लोथ्स है वो उन्होंने पहने होंगे, तो उन्होंने कभी बुर्के के लिए इतना प्रमोट नहीं किया। ये लोग जो कमरे में बैठे हैं, जो पूरी जिंदगी भर एक कमरे में ही बैठे, कुछ नहीं पता, एक एक्सक्लेमेशन मार्क, एक फुल स्टॉप, एक कॉमा, हर चीज से एक सेंटेंस पूरा चेंज हो जाता है, उनको ये तक का डिफरेंस नहीं मालूम। उनके फॉलोअर्स, उनको ही सब लोग इतना फॉलो कर रहे हैं। सो इफ यू स्टार्ट चेंजिंग थिंग्स एट योर ओन होम, स्टार्टिंग फ्रॉम एजुकेशन, कुरान शरीफ, रिलीजन, ऑन एवरीथिंग, तभी होगा चेंज। अब आप ये बताइए, एक वेरी इंटरेस्टिंग वन, आप ये बताइए कि व्हाई वुमेन आर नॉट अलाउड इन एनी ऑफ द मंदिर मस्जिद? व्हाई? द रीजन बिहाइंड इट इज that menstruation, the sanitary pads came hardly 100 years back. लोगों को ये चीज वो लोग प्रमोट नहीं करते कि भाई it came hardly 100 years back, and religions have been here from past 5,000 years. So आप मंदिर में एक न्यूबॉर्न भी जाता है, एक बीमार भी जाता है, ओल्ड भी जाता है, हर टाइप के लोग जाते हैं, जानवर जाते हैं। सो बेसिक लॉजिक अगर आपने यूज नहीं किया और आप सिर्फ अरे नहीं औरतें तो भाई जाएंगी नहीं, everywhere on every step, why these are happening and how this will stop, it is on us. We have to start it at our own home. शादी करवाएं बच्चों की, उसमें वो जो गिफ्ट्स आ रहे, अरे हमारे में तो होता है गिफ्ट्स देना, वो गिफ्ट नहीं है, वो दहेज है। आपके घर में उन्होंने आपको बेटी दे दी, अपने मतलब एंड स्पेशली एक नौकरी करने वाली अगर बेटी दी, इट्स लाइक जो पहले था एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, इट्स इक्वलेंट टू दैट। उन्होंने आपको पूरी जिंदगी एक बेटी पाली, वो उन्होंने आपको दे दी, एंड देन आप बोले जी हमारे यहाँ तो ना हमारे रिश्तेदारों में ये देना बनता है। नो, यू शुड ऑलवेज बी लाइक दैट कि 2 जोड़ी कपड़े में लो, आपकी कैपेसिटी जितनी आप उतने में अपनी न्यू बहू, जो आपकी न्यू फैमिली मेंबर है, उनको आप घर में आप ले और उनके साथ आप वैसे ही ट्रीटमेंट करें जैसे आपके खुद के बच्चों के साथ आप करते हैं। सो इट हैज टू एंड एंड इट विल एंड फ्रॉम अस। We have to start it, and ये वरना ये बातें 100 सालों से चलती आई है, ये आगे भी चलती है। टाइम का थोड़ा ख्याल रखिए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट हियर, एंड यस, वन थिंग आई वांटेड टू से, जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट पे जो उन्होंने बोला था, मैम वांटेड टू आस्क कि यस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जब आया था, वो सेक्शन आया था, उसके पीछे रीजन ये था कि इतने ज्यादा क्राइम हो रहा था कि दे वांटेड कि कहीं ना कहीं एक ऐसा लॉ रहे जहां पर लोगों को पकड़ा जाए। बट देन ऑफ कोर्स एवरी लॉ हैज अ लूप होल। सो उस लूप होल का फायदा ये कुछ फैमिलीज, कुछ औरतें उसको इतना मिसयूज करने लगे कि जिनके साथ जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, उसको कोई मानता ही नहीं है अब कि भाई इनके साथ ये हुआ होगा, अरे इन्होंने तो किया होगा, ये झूठ बोल रहे होंगे। सिमिलरली 376 रेप भी ऐसे ही आया था कि आपके साथ कुछ गलत हो तो पूरा उसके ऊपर एक्शन हो, बट देन अगेन दैट सेक्शन इज आल्सो बीइंग मिसयूज्ड। मैं 5 साल लॉयर रही हूँ, तिहाड़ जेल जाती थी मैं,
And I have seen young boys, hardly 20, 21 years old, had an affair, had a physical contact, but then rape होता. उन्होंने तो मुझे शादी के लिए बोला था, rape. These are absurd things that is been happening, but then it's us who has to teach our family members, our kids. अगर हम ही अपने पूरे खानदान को भी समझा देंगे, उतने में ही बहुत कुछ चेंज होगा, because हम लोगों का खानदान भी I think काफी बड़ा है, चाचा ताता बुआ बहुत लोग हैं. So if we started from ourselves, only then it will end. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you, Dr. Shams Ravish. आपका पर्सपेक्टिव हमें मिला, और you were from a very different background, from academic background, that was from legal framework. आपने एक बात कही कि domestically challenged बंदे बना रहे हैं हम लोग, ये society जो है is creating domestically challenged people. True, so true. आपने ये भी कहा कि gendered society हम लोग पहले दिन से create करते हैं through traditions. आपने जहेज का जिक्र किया, दूसरी चीजों का जिक्र किया, आपने औरतों के मंदिर मस्जिद जाने पर भी किया, तो मनाही तो कोई नहीं है. अभी एक मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि वुमेन इन मस्जिद करके एक मूवमेंट चल रहा है. 5 दिसंबर को मुसलमान औरतें जोहर की नमाज मस्जिदों में पढ़ेंगी, और ये कई मेजर मेट्रोपॉलिटन्स में हो रहा है, तो आप भी शामिल हो, जोहर की नमाज पढ़ें जाकर के. बहुत शुक्रिया. Now we move on to our next speaker. She is Mantasha bint Rashid, and she is a doctor in the making. She is a research scholar in Westminster University, London, and she is working on the topic, on the theme of violence against women in the valley, in the Srinagar Valley, Kashmir Valley. Sorry. So over to you, Ms. Mantasha, if you are there. Yes, Dr. Shiba, yeah. I'm Shiba. Good evening, everybody, and Assalamu alaikum. I'm very glad to be a part of this panel here. If my internet, shows some snag, let me know, because I'm speaking from Kashmir tonight, and the internet services are very absolutely, unreliable in Kashmir. So just let me know if at any point my voice starts to break or anything happens to the connection. So basically, I realized that most of the people on panel are known to each other, or they are acquainted with the work of each other. And I think it becomes very important to talk about where I come from, what my standpoint and position is. So basically, I'm a researcher in making, like Dr. Shiba rightly said. I also am a civil services officer in the state of Jammu and Kashmir, and I'm currently looking after Srinagar Development Authority, which is based in Srinagar. And at the same time, I have this women's group, which I've been running for 6-7 years now, Kashmir Women's Collective. And I have researched with women on ground in Kashmir for many years since my college, and also received Fulbright Fellowship to study gender and policy in New York. So I think it's very important to contextualize where each one of us is coming from and speaking from, because our position determines how we see violence and how we understand violence. Coming from Kashmir, which is a society in distress, I think violence takes altogether a different context and a different form. Although the types and forms of violence against women all across the globe are more or less similar, but the degree of violence and the understanding of violence definitely differs. Even if academically, if we see violence from psychosocial perspective or a lens, we tend to see violence differently compared to when we see the same violence through the lens of political science or politics particularly. And when we see the same violence from feminist lens, we do tend to see a different shade. So I think I would largely and overarchingly talk about violence from 3 perspectives, which relate to my identity as a researcher, as somebody who works on ground with women, and at the same time a Kashmiri. So when I speak from a position of a Kashmiri, it is very pertinent to mention here that acceptability of violence in a society increases and it is normalized against women when there is a larger culture of violence. And in Kashmir, as all of you know, that violence has been there for more than 3 decades now in so many different forms, be it armed insurgency, be it rebellion against the state, be it among different communities in Kashmir. So the overarching idea of violence, like Dr. Shiba, you rightly said at the beginning, that if we don't contextualize violence against women within the larger sphere of violence,
maybe against minorities, maybe the state-induced, maybe the insurgency-induced, we obviously do a disservice to violence against women as a theme. But at the same time, what Dr. Shamina said, that if we are unable to see this issue as an isolated issue, we again do a disservice to it. I think there is a very fine balance between the two. Seeing violence against women as a component of the larger culture of violence, as a larger acceptability and normalization of violence, and as an isolated issue, which is a standalone topic and definitely has its own reasons and root causes, we will not be able to do justice to violence against women as an academic theme and as, as an issue which needs an immediate address or redressal. So this is from the perspective of an academic. I wanted to talk about violence because contextualizing is very important before we move ahead. But as someone who has been working with women since my college, I understand that violence against women on ground is very different compared to what it looks on paper. Like the figures were quoted, that 2 in every 3 women across the world have suffered violence at some point in their lives, and 1 out of 10 women only dare to approach police station. And this is the statistics from the United Nations Women. But when we talk about these things in Kashmir, which is completely, clouded by political violence, the violence against women in personal spheres is obscured. It is completely hidden and it's very less talked about. Because in societies in distress, so many different kinds of violences act on the vulnerable people from so many different positions that there is an intersection between these violences. And to recognize this intersection is extremely important. So I'll tell you, when I was working with women in Kashmir Women's Collective, which is my women's group, I realized that in the Domestic Violence Act 2005, which is applicable all over India, we had a similar J&K Domestic Violence Act, which was passed in the year 2010. But now after abrogation of 370, the 2005 Act is applicable to Jammu and Kashmir. I realized that there is a section which says that shelter homes are mandatory. But when you see on ground, there is no shelter home on ground for women. Why am I emphasizing shelter home despite the fact that there are cases of abuse within shelter homes reported in Bihar or elsewhere in India? Even then, I think the safe space for women who are struggling to leave abusive marriages becomes extremely important, even if there are issues within those shelter homes, which definitely need to be addressed separately and can be done so. But at the same time, the absence of shelter homes, the absence of proper helplines for women creates a non-issue out of a huge issue in a society where the violence of various kinds is prevalent, which is Kashmir. So having interned with the Rape Crisis Center in New York, for example, I realized that designating a number as a helpline is not enough. You need to have a proper mechanism behind that number. In India, and particularly in Kashmir, what we do is that we highlight a number. This is the helpline number. All the women who, whenever they require any assistance and help, they can, call in and, they can speak. But that doesn't solve the issue, because we have to see whether we have resources, whether we have trained people and people with proper capacity building and people with gender sensitive training who understand and who believe the survivor, who go there immediately, who are able to address the issue in time. At certain time, when a woman calls for help, it is very time sensitive. And if we are not able to reach out to that woman, we lose that moment. That is only one side of the story. In certain cases, a woman has been, in abusive marriages or in extreme violence or discrimination for years altogether. And in that situation, we require services of various departments. We require services of different services. We require, services of doctors, lawyers, counselors. And there has to be a team of these people who address the issues of violence against women holistically, because it's not something that can be addressed by a single person or by a single profession or through a single lens. Therefore, understanding the issue of violence against women as a human rights violation, and then addressing it by way of providing service in terms of legal manner, in terms of psychosocial counseling, in terms of sometimes a woman, when she comes out of an abusive marriage, she is economically challenged.
many of the women still in the country and in Kashmir particularly do not have economic independence. And that's the reason why they are in abusive marriages. And once they choose to quit, they need a financial support. We have to have a policy and we have to have a mechanism, that addresses the issue of violence against women in a very holistic manner. Otherwise, we'll just be playing cards and we'll just be dovetailing the whole issue of violence against women with this idea or that idea. But we have to understand that it is a standalone issue, as Dr. Shamina rightly said, and it has to be addressed as a concern. Largely, if you see human rights concept or human rights framework is used widely to govern the public life, and we want the idea of democracy. We want modern acts and legislations. For instance, like I said, there are 155 countries which have acts against domestic violence. There are 140 countries which have enacted various acts against sexual harassment at workplace. But when on ground, we see in South Asia, particularly India, or for example in Kashmir, we see that we want our personal lives to be governed by personal laws. We don't want the ideas of democracy, secularism, modernity, progressive thought enter into our homes. We still say that, it is fine if a Muslim man is allowed to marry 4 times. It's okay if a Muslim woman who chooses to divorce her husband for genuine grounds loses a part of her property, and we call that, the process is called khula. Although if we go into the exegesis, if we go into the depths of religion, these things are basically said in a very different context. Again, I'll emphasize as an academic that context is really important. But now, how as we understand Islam or any other religion for that matter, it has come to be very abusive towards women or towards all vulnerable, identities, even sexual minorities, for instance. So how religion and how culture basically buttress the idea of violence against women is important to be challenged. So I think I spoke from the perspective of a researcher and also someone who works with women on ground in Kashmir. And at the same time, I think I spoke from the perspective of Kashmiri. I would wind up my talk with saying that on ground, we need to really invest financially in the policies which address violence against women. We need to, although have surveillance in a limited manner, but understand that prevention is better than cure. We need to understand how educating our men and women basically creates a space in which there is an acceptability for empowered women. Empowering our women is not enough unless the society is ready for empowered women. A woman who we empower goes to office, but then she has no one to share her household burden with. Unless you empower her husband, you empower her parents, that if a woman goes out, has economic independence, she needs support at home as well. As a result, women are doing double shifts, triple shifts. As a result, women, although they are stepping into public spaces, but their personal spaces are being threatened. The idea and the culture of creating safe spaces within personal lives as well as public lives is very important. And my request and my appeal to everyone on the panel would be that in whatever capacity we are, if we try to have a very holistic vision towards eradicating violence against women, whether it is by gender budgeting, whether it is by inviting women to a table where it matters, where their voice counts, or it is by capacity building workshops of various, personnel who are on ground dealing with violence against women, be it doctors or be it police personnel. This issue of violence against women is going to come up again and again. We will not be able to solve it completely. Thank you very much, everyone, for your patient hearing. Dr. Mantasha, thank you so much. It was such a layered and profound address. I really I would love to have you on a separate panel, and then we talk about all the categories that you have introduced here, the academic and administrative categories that you were talking about. Thank you so very much for this. You talked about the gender sensitization and the training, gender sensitive training. You talk about the safe homes, creation of safe homes,
And yes, of course, it is very time sensitive always. Whenever the case of domestic violence is reported, time is very crucial, very important. And you also talked about the economic independence and the holistic approach towards the issue. Thank you so very much. Now, we have I invite our last speaker, but not the least, Dr. Tabassum Jamal. She has had a very long stint with CSIR, which is a very prominent institution of science, and we are lucky to have her. This was something that was missing. We are activists, politicians, advocates, and academicians. Now we have a scientist with us. Dr. Tabassum Jamal, over to you. The floor is yours. Is it me only who is unable to hear any sound, or is there any problem? Can't hear anything. You'll have to unmute yourself, ma'am. You're on mute, I think. Hello. Am I audible? Am I audible? Yes, you are. Yes, now you can. Yeah, so thank you very much, Shiba. And I would like to thank you, first of all, Javed Bhai, for introducing me to IMPAR, and Mr. Khalid. We had a talk the other day, and this is my first meeting with IMPAR, that we are sitting with all the specialists from educationists and from journalists and from legal practitioners. So as I was listening since the first speaker, I think most of the issues have already been addressed. So I will not go into those issues. But yes, I must say that this today is a very important day where we are addressing the issues and the universal phenomenon, the violence against women. And since, it is not just the violence against women, it is basically the crime culture of a state. But since today is the day dedicated to the women to talk about, so we will talk about for these part only. So my focus would be that since I'm coming from CSIR, and I have seen, there are many segments of, women, they work and they go out. It's not that only the weaker section, economic weaker section, they face this kind of violence, but it is basically in every strata that, women are facing problems. So, and especially COVID time, we have seen that these kind of problems, they have risen 10 times. So how do we handle, what are the solutions? I think we should talk, because the problems are there for centuries and they will remain so, but what could be the solutions? We should focus maybe more on that. So I would come to the very first point, that how IMPAR can help to eradicate some of these issues or to help for these problems. So my suggestion would be that if we have different working groups at IMPAR, so if we connect IMPAR with some other NGOs where they are dealing with these kind of issues, so there we can connect them basically for the education and for the skill part, because first of all, the skill part, if that is there, then only these females, they will be economically stronger. And as far as this education, and first of all, the whole problem starts from home. As many of my previous speakers, they have said that you have to handle, from home. The charity starts from home. So if we start that, this is a cultural shift we have to think. This is a cultural shift we have to bring, that how do we not segregate like boys and girls, and we take them as one child. So this is the point that, we can adopt some of the clusters where we know that there are problems, and then we can try to educate them in such a way that they educate themselves. It's not just the classes, but they should skill themselves so that they can do some work and they can not be dependent on men, for which they face a lot of problems. And moreover, the problem is that there are laws, there are legal helps, but how much is the awareness? Most of us, we do not know that what are the
legal helps exactly available. So I think it is basically dissemination of information, which is very much important, that how women should know that what are their rights and how they can approach, what kind of help they can get when they are in distress, and what kind of help, they can avail. So this is basically a system, where we have to see, as my previous speaker, she said that we have to see the whole problem in a very holistic way. So that information part, awareness part, and how we can involve ourselves with the people whom it is required. So that is very much important, where we can bring some kind of, what should I say, the point-wise information, which can be given to the household, or which can be distributed to the clusters where these kind of situations are there. Moreover, the education part and the skill development part. In fact, let me say that many of the polytechnics and ITIs and many other educational institutions, they have their number of programs where they are giving a lot of free education. There is no cost to the girls. So, first of all, that awareness is important, and that awareness can be given only with the interaction. So if possible, through the Impart platform, we can outreach to those clusters or those people, at least, some portion, because you cannot do in one go, but you have to take small steps so that they can be able to educate themselves, have some skill training, some vocational training, so that they can be involved in some kind of job. So these are the points. And moreover, our universities also can play a very important role in that, because if I take Aligarh University, they have this polytechnic, and there also they have many courses and many programs, and where it is not that you are 9th or 10th or 5th pass out. It is basically, if you have not passed out anything, there are programs where a girl can join for skill training programs. So these kind of departments, they can also help. But point is that how to connect. So Impar, I believe, as one part of solution, Impar can connect, with these kind of joints, where some problems can be taken up with the help of these. So I think time is not that much, and most of the points have already been said. And this is a very important that coming 15 days, we will be having this kind of awareness program and seminars and conferences, where we should more focus that how women should be independent, economically independent. Plus, they should have that confidence, and confidence will come when they will have that kind of basic thing with them. So, of course, that mindset has to be changed. This is basically one single point that cannot be denied at all. That mindset is to be changed. Then only one can say that you can fight with these issues. So I think I will stop here, because I think many points have already been said. I will not. Now there should be some time for question and answers. Thank you so much. Yeah. Shukriya, Dr. Jamal. Thank you very much. You straight away went into the solution mode, and you talked about how Impar can impact, how it should be doing more of handholding with the other NGOs, specifically working on various areas. And you also talked about the awareness of the laws related with women, and the deficiency of information is one major, impediment in actualizing the women empowerment that is there. So very true. Now I ask everybody who want to ask questions, please raise your hands, or you may ask your question virtually, and we will not have a very long Q&A, but we will try to take up the important ones. And then I'll request Dr. Khwaja Shahid to give a vote of thanks on behalf of Impar. But before that, we will have question and answer sessions. The admin may start taking questions, or may guide me if I am unable to see all the screens. If there is any hand raised electronically here, virtually. Yeah. Dr. Mohammed Kamil, I see your hand, and Dr. Shamina, आपको हम बाद में ले लेंगे. ठीक है, पहले आप हम सुन लेते हैं. सवाल नहीं है, छोटा सा पॉइंट कहना था बस. ठीक है, कह लीजिए. पॉइंट ये है कि आज हम इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और यहीं पर मुझे लग रहा है 48 हम लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, और एक भी मेल मेंबर अभी तक इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पर नहीं बोला है. तो मुझे लगता है आइंदा जब हम कभी ऐसा कोई डिस्कशन करें, तो उसमें जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए,
महिलाओं के मुद्दों पर मर्दों को बात करना ज्यादा जरूरी है। नहीं, सुन के बोर हो आप गए सही कह होंगे। रहे हैं। और अगर आप शमीना, मैंने आप आगाज किया था और मेरे ख्याल से नहीं, I'm a अब हम gentleman. सवाल ले रहे हैं, सवाल ले रहे हैं, मर्दों नहीं, से सवाल लेंगे। शिबा आप जी। अंदाजा लगाएं कि जी। हम औरतें खामोश बैठे रहे और 2 घंटे मर्द सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताते रहे, तो हम लोगों को कैसा महसूस होगा? So I think it is very important to have a balanced discussion. That's the only point I wish to make. शीबा, नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हमने तो ये सोचकर महिलाओं को ही लिया था कि क्योंकि इंटरनेशनल वीमेंस डे है ऑन वायलेंस, मगर तो विमेंस के इशू पे मर्दों को बोलना जरूरी है। जरूर जरूर जरूर। Khalid Saab, May I started with this contention Point should be noted that and there question has answers to should be start. a larger male audience. Point should be for noted this. and question answer should start. May I please? Very true, Dr. Dr. Muhammad Kamil Kamil Sahab, you is may- very, you I may think, unmute anxious to ask and come. questions. I should start with Dr. Muhammad Kamil Yeah. because I see in the conversations he's been asking questions, right from the beginning. Yeah. Why don't Actually, you- I have not. Assalamu alaikum to everybody. I have not been asking question. Actually, I've been hearing and I've been listening patiently to each and every speaker from Yes. various fields. I mean, most likely, all of them have tried to be little skewed towards feminism. Apart from Dr. Lubna, who said that she's gender neutral. My contention here is what other speakers have also said. Am I audible? Yes, very audible. My contention is that, of course, the violence against women is not a time period which we have to discuss now. It's an old tradition which has been over a period of time we have faced, and yes, we have to work towards it. It cannot be worked through seminars. Now, my statement, my addition was when advocate was from Supreme Court. I don't recall her name. When she was talking about home science. She was talking about everything else. I have faced certain issues where Justice Krishna Iyer has said in his judgment in the Supreme Court that Section 498A. She also mentioned, I believe that, and some other speaker also mentioned. Section 498A is a legal terrorism used by females in India, which is more than 70%. Let me tell you this is my research. Okay. What is the size of the sample? I'm sorry, I need to ask this. What is the size of the sample when you're talking about research? No, the size of the size of the sample. You cannot generalize by saying. Yeah. And I'm not generalizing. I'm saying it was a judgment quoted by Justice Krishna Iyer, where he said that it's a legal terrorism, where the Supreme Court, by its own, had done a research through NCRB, and NCRB had provided the data to them. That 498 has become a legal terrorism. They didn't say it was a legal terrorism earlier. Now they are saying it has become a legal terrorism. Justice H.R. Khanna also said, and other the judges who were pro-women. So it's not a matter of the sample size. It's a judgment based on certain cases which have been followed. Now the second issue of domestic violence. Let us take the questions rather than having discussion now, because discussions are over. We can have a men's only seminar on the subject. Yeah, we can have a men's only seminar on the subject very soon. Sorry, I'll just wrap it off. Yes. And second point which I would like to question here is, when the moment we are gender neutral, the moment when you organize such seminars, and in the eyes of law, keeping everybody in the perspective, you should very rightly somebody said that we should also involve people who have done various work in the field of resurrecting the violence against women. One point. And secondly, Domestic Violence Act of 2005, as the advocate may be knowing, has been also, ma'am, widely, misused, not at a domestic level, but even at the level of courts, because there is no, other than compensation, there is no provision of any sort of saza nahi milti hai isme, and there is nothing like that. Only compensation is given. So Domestic Violence Act also needs to be, more addition has to be done on that. This is what my contention is. And please, next time when you involve, have the seminars
do try and involve people from other areas also, and males, yes, because we cannot be chauvinist at all. We have to live for the society on the holistic approach what the researcher from Kashmir has spoken about. Thank you so much. मोहम्मद साहब, आप जो बात कह रहे हैं मोहम्मद कामिल साहब, ऐसा है कि भारत में कौन सा ऐसा कानून है जो मिसयूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी कानून तो बनाना पड़ता है ना। जब हम देखते हैं कि औरतें जलाई जाती हैं, बहुएं जलाई जाती हैं, और खास तरह के क्राइम सिर्फ खास तरह के एज ग्रुप के साथ होते हैं, तो हमें पता होता है कि ये क्या हो रहा है। दूसरी बात, आपने जो जेंडर की बात की, आपकी बात सही है, फेमिनिस्ट स्टडीज से जेंडर स्टडीज की तरफ चले गए हैं, और सिर्फ मर्द औरत का मामला नहीं है, देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ जेंडर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड थिंकिंग अबाउट। तो आप सही कह रहे हैं कि ये उस तरह की सेमिनार नहीं है। हम लोगों ने, क्योंकि ये पहला दिन था, कमेमोरेट कर रहे हैं, तो हमने एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट्स जो है उनको ही यहाँ पर लिया है। मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ कि एक मर्दों की भी सेमिनार हो जिसमें जेंडर पर बात हो। दूसरा, हाथ उठा हुआ मुशर्रफ अली साहब का, वेरी सीनियर एंड मैं थोड़ा इसमें थोड़ा सा ये जवाब देना चाहूंगी कि एक तो इन्होंने बोला कि जो लॉ आया है डोमेस्टिक वायलेंस, उसके ऊपर ये प्रॉब्लम है कि लॉस आया है बेटरमेंट के लिए, बट एवरी लॉ हैज अ लूप होल, तो इसलिए उसका ना मिसयूज हो रहा है। अनडाउटेडली इट्स बीन मिसयूज, लेकिन जो आपने बोला कि 70% है, that is false, that's absolutely wrong, whereas I would say it is 50-50, and कितने केसेस में तो रिपोर्ट होता ही नहीं है, तो मिसयूज है, but 50-50 I would say it's not 70-30। शिवा जी, एक क्वेश्चन है, कोई अलीशा जी हैं जो इजराइल से हैं, तो उन्होंने चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन लिखा है, तो आप अगर उसको देख लें एक दफा। हाँ, मैं देख रही हूँ, तो जी जी एक मिनट में देखती हूँ। Why is it not there? At the same time, meanwhile, if Shivaji देख लेंगी, I would like to respond to Khalid Saab when he said that there is not much provision under the Domestic Violence Act of 2010 other than compensation for the victim. That's correct. There is a provision of protection, and there is a provision of residence also, because in earlier times, a man would be at free will to drive. The concept of shared household is there. Please, Shivaji, go on. Yeah, so the question from Israel is that Alisa Moses is asking that does the curriculum across India, students aged 10 to 18, include the issue of violence against women? As far as I am aware of this particular question, no, there isn't any gender sensitive framework within the syllabus between 10 to 18. So yes, you have pointed out correctly that it is not there. Whenever we are talking about the problems, social problems India is facing, we are talking about other things like caste system, caste divide, and communalism, and other things, and corruption also at times. But we are still not talking about the crime against women or the discrimination of between the genders. Thank you very much for raising this issue. Now we have Musharraf Ali Sahab. Musharraf Sahab, आप फरमाइए। शिवा जी, एक क्वेश्चन और ले लीजिए उसके बाद, और फिर खत्म करते हैं, फिर वोट ऑफ थैंक्स के लिए इनवाइट करते हैं ख्वाजा साहब को। जी ओके। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पूरी बहस में बहुत अच्छी सारी बातें रखी गई हैं, और बहुत बेहतर ढंग से रखी गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो हिंसा बढ़ी है, हिंसा तो बहुत पहले से है, और महिलाओं के खिलाफ एक नजरिया जो है बहुत लंबे टाइम से है, लेकिन इन दिनों जो हिंसा बढ़ी गई है पिछले कुछ सालों से, उसमें जो बाजार का हाथ है, उस बाजार के हाथ को जो है मुझे लगता है कि उसे ज्यादा स्पष्ट करना चाहिए, साफ करना चाहिए कि ये जो फ्री मार्केट कंसेप्ट है, तो इसमें यौन उद्योग जो है एक बड़ा आमदनी का जरिया बन के उभरा है, और इस सोशल मीडिया ने और ये जो संचार क्रांति है, इसने इसको बहुत आसान कर दिया है, और इस वजह से हर आदमी को मोबाइल पर इस तरह की चीजें, अश्लील चीजें उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से इस हिंसा में वृद्धि हुई है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी जो है शायद ये पहलू रह गया है, इस पर भी गौर किया जाए। और दूसरा, मैं एक और चीज, एक सवाल है जिसे मैं रखना चाहूंगा,
और इस पर आगे भी जरूरी नहीं है कि इसी टाइम जवाब दिया जाए। मेरे सामने कुछ आंकड़े खुले हुए हैं। इसमें यह है कि जो महिलाओं के साथ जो शिकार हुई हैं सेक्सुअल वायलेंस के या फिजिकल वायलेंस की, तो अपने साथी के साथ, जो करीबी साथी है उसके द्वारा उसके आंकड़े हैं। तो इसमें क्षेत्र वाइज दिया हुआ है। तो इस बात को सोचना है कि क्या किसी क्षेत्र की कल्चर है या वहाँ की माइंड सेट है लोगों का, जिसकी वजह से वहां ज्यादा हिंसा हुई है। और दूसरी तो ये बात को जो है मैं रखना चाहता हूँ, जैसे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, इसमें सबसे ज्यादा 45% जो है हिंसा के मामले दिए गए हैं। उसके बाद साउथ एशिया है और नॉर्थ अमेरिका है। मैं देख रहा हूं कि सबसे कम ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया के हैं, जहां 19% मामले हैं। तो ये 19 सेंट्रल यूरोप और सेंट्रल यानी कि ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया, ये यहाँ का कौन सा कोई कल्चर में चेंज आया है या शिक्षा का उसमें चेंज आया है कि यहाँ के जो पुरुष हैं उनके अंदर महिलाओं के साथ हिंसा की प्रतिशत जो है कम है 19। और आप मिडिल ईस्ट जो जो पूरा अरब क्षेत्र है और नॉर्थ अफ्रीका, वो वहां पर भी जो है ये लीबिया से लेकर और ये मिस्र और ये सब आ जाते हैं। तो ये सारा क्षेत्र जो है यहाँ हिंसा जो है क्यों इतनी ज्यादा है पुरुषों के साथ। तो इस बात पर भी जो है सोचा जाए कि क्या है, ये जवाब देंगी या लोग समझेंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। लेट अस टेक टू मोर क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया। एक और सवाल, नासिर अब्दुल्ला साहब, वेरी वेल नोन फेस, वी आर लकी टू हैव हिम विद अस। नासिर अब्दुल्ला साहब, आपका सवाल प्लीज। आप अनम्यूट कर लें प्लीज। अभी Okay. Do you hear me now? Yes. Yeah, we can. Okay, just a few lines. It's an observation, and I have always actually felt this somehow, and nobody seems to have actually talked about it except one of the lawyer ladies, Miss Rien, R-E-I-N, when she said that it actually starts the day the girl is born somehow. तो मेरा मतलब बस इतना ही था. I think it's very important, and it's not been attended to, that the previous government, the Congress Party and the BJP and nobody else, all along after independence at least, should have insisted that there be some form of education for the men folk and the women folk to understand, especially the boys who are actually growing up, that the lady next to them is equal to them. Somehow that sort of education has never been there. So the children, the boys, learn about how to deal with the women, with the girls from their home. And if the parent, the father, is a bit of a male chauvinistic man, etc., he's always in charge of everything and he's very strict, and the wife is also very subservient. So they don't learn how to respect the women from home. We learn everything in our school about the climate, about the civics, about the political science, about how to make the money, but we do not learn how to respect our women. It's very simple. One of the classes should be dedicated in our schools to ensure that the boys understand that the lady sitting near them, next to them, is like their sister, is a partner. It is not a big deal, but somehow वो चीज आ नहीं रही है और वो अपना चलती चली जा रही है. तो education, and I think we should also tell actually Mr. Kejriwal to insist on this कि भैया मतलब बड़ा जरूरी है. जब सब कुछ स्कूल में सिखाते हो तो औरत की इज्जत करना भी क्यों नहीं सिखा सकते स्कूल में? बहुत ही सिंपल बात है, आगे जाके हो जाएगी, बट दे हैव टू स्टार्ट समवेयर. थैंक यू. शुक्रिया नासिर साहब. आप जो बात कह रहे हैं, एलिसा मोजेस फ्रॉम इजराइल पॉइंटेड आउट द सेम. इट गोज वेल विद हर क्वेश्चन कि हम 10 से 18 साल के बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं. आपने भी वही बात कही है, बिल्कुल ठीक है. और सर्वेलेंस का जो सवाल है वो लगातार केजरीवाल से जुड़ जा रहा है, लेकिन लोग ज्यादा बड़े इशू को, फलक को कवर कर रहे हैं यहाँ पर. बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए. ख्वाजा साहब, अब आपसे गुजारिश है कि इम्पायर की तरफ से सभी स्पीकर्स और सभी सुनने वालों और शामिल होने वालों का शुक्रिया अदा कर दें. वोट ऑफ थैंक्स टू यू. ख्वाजा साहब. Thank you very much. I think am I audible? Loud and clear.
I'm audible? Audible? जी जी, थोड़ा सा और तेज बोलेंगे तो अच्छा। अच्छा ठीक है, मैं करीब कर देता हूँ। मैं एम्पावर का शुक्रिया करूँ या ना करूँ समझ में नहीं आता है, लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर एक फॉर्मल जिम्मेदारी है, तो एम्पावर के खालिद अंसारी साहब और तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कितना इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल एंड इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया. To me it was really added to my knowledge and my understanding of the issue, and I'm sure most of the participants or listeners must have been enriched on the subject. And we must be going back our homes or staying back our home more knowledgeable and more concerned to the issue and more aware about the issue. बहुत सारे पहलू के ऊपर, बहुत सारे एस्पेक्ट के ऊपर गुफ्तगू हुई है. हर पहलू अपनी जगह बहुत ही जामे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ऑल द स्पीकर्स nothing more to be added except to agree with most of them. Religion and religious literature. There are many religious discourses, understanding women at a slightly lower status in our society, in our culture, in our understanding. I'm sure the religious people will not agree. They will have a lot of justification and a lot of explanation, but there are certain clauses which puts in our mind that their women are slightly inferior to men. This is something wrong which has to be corrected. It has to be understood that they are equal. And of course, the point which is most important point is that the law itself alone, or the law enforcing agency alone cannot enforce the respect for women. They can do all type of things. They can do investigation, they can do deterrent activity, they can do surveillance, they can do all types of activities and the punishment, etc., but they cannot be the only answer. The society's response, the social response, the mental status response, the psychological response, as people said, educational response, all these things are also equally and in fact sometimes more important. ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे बहुत सख्त लॉ बनाए गए चोरी के खिलाफ, हाथ काटने तक के कानून बनाए गए, वहाँ भी चोरियां हुई हैं. इस तरीके से लॉ बनाने से चोरियां खत्म नहीं हुई हैं. तो बहरहाल लॉ का अपनी अहमियत है, मैं उसको अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समाज की अपनी अहमियत है. I must conclude by thanking all the speakers one by one individually, all the participants, the lovely discussion, question, answer, suggestion. I hope Empower will compile all this session and will carry forward in our plan of action. Thank you, each one of you. Thank you, one and all. Goodbye. Good night. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Shivaji, for conducting. Thank you, everybody. Good night. Thanks a lot. Thank you. Thank you all. Thank you all. It was a pleasure being with all of you. Thank you for hosting this lovely discussion. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank Good you, night. team. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Thank you. Khuda Hafiz. We may stop recording and then we can have a chit chat if somebody is staying on. I'm in. You are in.